तो हम टॉस जीतते तो हम भी बैटिंग करते, बॉलिंग करते। सॉरी, इस पिच पे जो एवरेज स्कोर है वो 178 है, तो आप सोच रहे हैं कि वहां तक पहुंचेंगे इस मैच में? कोशिश करेंगे कि 170, 160, 170 इस पे अच्छा स्कोर होगा और हमारी बॉलिंग भी अच्छी है, तो इंशाल्लाह। टीम न्यूज़ आपकी? टीम हमारी सेम टीम खेल रही है। Right, all the best, Yasir. थैंक यू। Right, the news is that Northern have won the toss and they've decided they're going to bowl first. So we've decided now. This is what it looks like. It's a pretty good side, strong, balanced side for Balochistan on paper. Shan Masood, Hasibullah, Abdul Wahid, all in form. Even Asad Shafiq. Aris Sohail's entry needs to get some run. Hussain Talat is the big one. If he can get one innings going, he can be their finisher in both sides, whether they're chasing or putting up a target. Ahmad Bhatt has been a good all-rounder for them. Kashif Bhatti has to arrive. Yasir Shah is great with the bowling. Khurram Shahzad has been a touch expensive. So has Junaid Khan, but they can pull up their socks. And look at the northern side. Ali Imran is showing good talent. Along with him, Mubassir needs to get some runs. Umar Amin, the captain, coming in. So there is a lot of experience added to the side. Hassan Nawaz, we've spoken a lot about him. Rohil Nazir back in the side, that's their change. Amir Jamal, Sohail Tanveer, Shinwari, Salman Arshad, the quicks in their side with the youngster Mehran Mumtaz, the left arm spin. All right, this is the pitch here, and Ali Yunus joins us. Tell us more. What have you seen in the first match today, and how do you see to go out there and bat on this pitch? Well, they've been similar, these pitches from last couple of days, rather more than that. They've been nice, solid. The ball is coming nicely onto the bat, but you got to wait. It's not that sort of pitches that you'll go on and start hitting big straight away. You got to take your time and then start look to accelerate. Hasibullah, probably he would like batting on that. He's somebody who's temperamentally very good. Scored 49 runs, still early days for him. But yeah, you've got to learn. You've got to stay patient on this sort of pitch. Very experienced Asad Shafiq. With him, 2,311 runs, average of 25. The strike rate is 117, the best of 92. And we all know him. Sohail Tanveer has been around for a long, long time now. 37 years of age, 374 matches, wickets 383, best of 6 for 14. That tells you the story that he knows how to get wickets. He would like bowling on this pitch, overcast conditions. He will get some assistance there also. One slip, backward point, cover mid-off, the offside field, and there's a third man. That's the man outside the circle. Mid-on, fine leg and deep square leg. Straight away, Balochistan off the mark with that single. Yes, Hassan. Hasibullah and Asad Shafiq opening for Balochistan. They've shown some good talent. One of the sides that has won a game by chasing. Not been the norm up till now. That's the first ball. So important that you know the art of running a single inside the 30-yard circle. How well have you hit the ball and your partner trusting your call? Yeah, just love how Asad Shafiq has just gelled in with this Balochistan side. Those two youngsters playing around them, Hasibullah and Abdul Wahid Bangalzai. Umar Amin, at the time of the toss, when he won it, he said we'd like to restrict them to around 150, which is fair enough. You'd expect the opposition to make at least that much. I'd still say play sensibly. We've seen sides not losing wickets in the power play, even if they're going slow, 6 runs and over, but then they can go and express themselves later on in the last 5. You can get yourself even 190s, we've seen them, but I'm not going that far, but at least 165 plus. Getting a bit of swing here. So Hilton, you'd like to take advantage of that in the first couple of overs when the ball is allowing that. Also, overcast conditions. Umar Amin has that thing in his mind too. Sohail Tanveer, a very experienced campaigner. So at the toss, he was of this opinion that rain might come,
the game might shorten a bit. So that will always help when you're chasing. So that, they've got everything planned out, this northern side. They've been coached by Ijaz Ahmed. He's correct in technique. Hasibullah has a misfield there. They will just be settling with one. Someone's hurt out there. Ali Imran, he's probably got a bad bounce, is it? Seems to be in a bit of bother there. Getting some help from the physio. But what exactly happened? We'll probably have a look at the misfield and what went wrong there. He's such an important part of this northern side, Ali Imran. Put some runs in the last game. Wrong-footed. Got that knee into that. Remember, this is the ground which had rain and early in the morning, so it's not that dry. Still soggy. He's rushing to the ball, he overshoots the target and then tries to stop himself. His left foot gets a bit stuck and that's the knee where the body weight actually falls onto it. Now he's up on his foot. This is a little while ago. He's actually walking out with the physio, so I guess he's going to take some time out. Sometimes when a bit of treatment is required, the umpires say get on with the game. You can go and take a bit of rest and treatment and come back. He's not a bowler, or he does bowl, but he's not bowling for Northern, so he doesn't have to worry about the part where he has to be in the field for a certain amount of time, the time he's been out there. Standings at the moment. Khyber Pakhtunkhwa, no surprises, 4 out of 4. And then there's a gap. Southern Punjab, 4 games and 2 wins and 2 losses. Lots of teams on 4s. As I said, you're going halfway through almost into the tournament. And I'm pretty sure that all these sides have found their best 11 by now. Yeah, without Central Punjab for sure. They're still searching for their first win. Haven't gotten their combination right so far. They've made few changes in every game almost. Okay, so then we're bowling to Asad Shafiq. Beautiful line, boys. Lovely boys, lovely boys. Northern would be hoping that Ali Imran gets fit and comes back to the field because he's been such an important part of this northern side. He has scored runs. Yeah, that's what Umar Amin was thinking about, that he might have rain later in the day. He'd like to chase. It's always good in a short game that you chase. In the first game, we saw KP chasing down score. He's come back. They've won a game. Umar Amin, a very good player, a very good captain, a very good man. Jags in a bit. And cramps him up for space. He likes to just get that half a foot forward and play things through cover. It's not a bad technique. When you know the ball is swinging in late into you, you don't really bring that right foot out completely. Probably when the ball just tails into you, then you find it tough. So just half a foot forward. You still got that vertical bat. In a good position to improvise if the ball is dipping in or staying straight. Yeah, one है, leg. Middle चाहिए. Just center. Salman Irshad will start off proceedings with Sohail Tanveer, 26 year of age, 36 wickets, best of 4 for 30. Yeah, play straight, play through the line.
He's just going to say that he's going to bowl into the stumps. Flat, quick. You play with a straight bat and you will be rewarded. Yeah, beautiful shot. Asad Shafiq is too experienced and he knows how to play on certain pitch. Well, look at that, realizing that you got to play straight. That's how you do it. An excellent result for him, a very good start. These are not easy conditions. Overcast, pitch is very good. You need experience up the order. Asad Shafiq has been in good touch lately. In this tournament, we haven't really seen him converting those starts into big scores. I'd love to see that. And it's a very good thing Mushtaq Ahmed, the head coach of Balochistan, is doing. That's the boundary. That he's sent an opening pair with an experienced batter who's played a lot of cricket at the highest level. He sent in an upcoming talent along with him. A lot rubs off onto the youngster from the experience, Asad Shafiq. Not just what he's telling you. He's just standing at the non-strikers and observing him, his mannerisms and how he's dealing with certain situations, how he's facing certain deliveries on certain surfaces. Even in the dressing room, you learn how the senior is carrying his kit bag, for that matter. It's all about discipline. Good shot. You see, that's what I'm talking about. There's a certain level of discipline in his batting, calmness in his batting, understanding the situation. He wants to keep up with his senior. That is excellent batting on the up, finding the gap, Asibullah. As you just were saying earlier, I just love how these two young batters are being managed. Asibullah and Abdul Wahid Bangalzai playing around Asad Shafiq, Chan Masood, Haris Sohail. It's huge. Going down, definitely. Just a huge learning for these two youngsters from Balochistan. These are the two local lads from there. Abdul Wahid Bangalzai, lots of promise, lots of talent. And these, somebody like Asad Shafiq or Haris Sohail, Chan Masood, they'll all be learning from them. And on top, they've got Mushtaq Ahmed as their coach. Shot and a half. That's 4. Beautifully done by Asad Shafiq. A bit of expensive over from Salman. 13 of it, 18 for no loss. On the up again. Stand and deliver. Placement perfect. Result also perfect. Have a look at that. No chance for Umar Amin. After 2, it's 18 for 9 Balochistan. Such a great feeling for somebody like Asibullah and Abdul Wahid Bangalzai playing around all these big stars. They've got, this side is full of superstars. Yasir Shah on your screen with Shan Masood, Hussain Tala, Junaid Khan, Kashif Bhatti, everyone. It's just huge stars. Pakistan had a great outing yesterday at the Dubai International Cricket Stadium. What a win that was. A great game of cricket. Some good batting, some nerve-wracking moments. Pakistan winning that one and holding fort. Won that by 5 wickets. Brilliant from Nawaz at number 4. Rizwan, as always, 71. Never giving up. Pakistan has a good start in the Super 4.
And that's a good run. No backing up, so the point fielders thought it was just going to be useless throwing the ball at the stumps. He could have tried actually. Back himself, just a start. He could actually go for it. Oh, yes, he could have. Now, there was no one backing up. Maybe that's the case. So Tanveer was expecting a better effort from the fielder because it was played with soft hands. I'd still throw it. It's not like you need 7 runs of 10 balls. It's the start of the game. You're talking about Asad Shafiq's wicket. So pleasing on eyes, this youngster, Hasibullah. Technically very correct. He's got a huge future in front of him. He's a wicketkeeper who can bat. Such a luxury to have in your side when you're a young wicketkeeper who can open the inning also. Just gives the balance to the side where you can play and add another batter in your side because your wicketkeeper can bat. And if you're somebody like Hasibullah or somebody like Rizwan for Pakistan side, they give huge balance to the side. Yeah, your wicketkeeper has to be a top order bat, somewhere in the top 4. You can't have a bits and pieces batter and a good wicketkeeper. You need that extra batsman. You're sacrificing. If you don't have that, then you go for makeshift wicketkeepers, and that doesn't really work. So you've got to have them. Kingdom Valley. You log on to their Facebook page and get a chance to win exciting prizes. Be the next winner. Still getting that ball to come in, shape in, Sohail Tanveer. That's a good plan out there. Sohail Tanveer is being very miserly bowling there. He's not allowing many runs, so they're cashing out on the other end. 3 boundaries from Salman Irshad's over, so they're keeping up with that pace. 7 and over, good part. The wicket isn't. Wickets are all intact. So it's all ghar wali baat. Yeah, not quite ghar wali baat because the pitches, they've been excellent. They've got bounce, they've got pace. Few times we've seen batters struggle also. But if you can hit like that, there is no problem whatsoever. He's placed it beautifully. This young Hasibullah is full of talent. Ending this over with a boundary. On the up again. This is not exactly very intended. But lucky for him, the fielder at third was inside the circle. Or no, in fact, he was. But he placed it beautifully. It's 24 for none after 3. Another very talented youngster, Mehran Mumtaz, is rated really high as far as left-arm spinners are concerned. He's 19 years of age, 3 wickets, but he's better than the numbers suggest. That economy, touch higher side. Well, he'll milk you any day, Master Shafiq, if you ball him on his leg. He's so good on that leg stump. Anything there, he'll punish you. There's a fielder placed at mid-wicket for him and a fielder at long off. This will be an interesting battle between two youngsters, Mehran to Hasibullah. Will he go after him? That's the question. Will you make use of this power play?
Mid wicket and long on in position for Mehran Mumtaz. He's more of your offside player, so smart enough to just make a bit of room and play inside out if he wants to search for a boundary. I would highly doubt seeing him slogging one down to mid-wicket unless you're saving a boundary or something like a drive for a single. That's simple, good cricket. Eased it for one. That's someone else wearing Asad Shafiq's shirt. What great talents. Having a chat. They're talking about that catch from last night. I'm very sure. Everyone in Pakistan is. Yeah. The minute they saw themselves on the big screen, they said, oh, okay, let's watch the game. Two lazy approaches. Trying to drag it from outside off. Having a chat with himself. I don't see Balochistan really having any fuss with trying to score big or fast at the moment. Just keep going the way they are, scoring at around 7. Yeah, Pakistan's performance last night, brilliant. Pakistan is on a roll. We'll talk more about that. 27 for no loss. One nation, one passion. There's no doubt about that. Cricket is the only passion. Pakistan lives the game. And we talk about this. 7 T20s coming up. 3 test matches after the World Cup. But right now we get ready for this 7 T20s against England, starting from the 20th of September, which is right after this tournament, the national T20. Usman Khan Shinwari is going to take the ball from the far end. Runs here. Suhail Tanveer will cut it off. Northern had kept things tied in the first 4 overs, just giving away 27 runs. But we all know that this Balochistan side is full of talent, full of big names. Khan Masood has been in tremendous touch with Abdul Wahid Bangalzai, Faris Sohail in the list also. Khan Masood there, padded up. He's been in tremendous form. Ahmad Bhatt, Kashif Bhatti, they're all chipping in. But somehow the results not gone their way as they would have liked. And you can see from last over or so, Asad Shafiq has been a little itchy. He's just looking to go for runs. In the last over, he attempted that reverse sweep, then a sweep shot, which was, the ball was not quite there. He's looking for some runs. Standing in his 27th T20, Faisal Afridi, a very good umpire. Excellent umpire he is. That's all I had there for you. That square leg. What was that? Ball just rolled to the keeper. Forget about the line. It just pitched and died.
I just wanted to roll his fingers, quite not getting it right, Usman Shinwari. It's too early for him to try all those things. He's just into his third delivery of his spell. Trying all those tricks too early. That's Ijaz Ahmed, the coach for Northern. Just one win so far. They're the home side. That's good stop from Umar Amin, the captain. Would have been at least a couple had he missed that. Probably gone for 4. Yeah, there's a different energy since the time Umar Amin has joined the side as captain. They won their last game, his first one of the tournament. It has strengthened their batting lineup also. Royal Nazir coming back, but I'm really worried about Ali Imran. He's the man in form. He's gone out after injury. We'll have a news about him in a bit. Yeah, good looking shot to the fielder. Need not get worried about if the dot balls are coming too often. Just get yourself in. 4 of the over, that really is not a problem. Power play, another over to go after this. Yeah, but what we have seen is that you don't want to be leaving out too much for the batters to come, because we know that first 6 overs are so important. If you don't you're off to a good start. We've seen teams struggling by the end of the inning. It won't happen today. You're so sure about it. Oh yeah, I'm pretty sure. We always talk about the first 6 overs. 6 overs are very important, but so are the remaining 14. Yes, I understand you're talking about the circle limit, cash out on that, but we haven't really seen big power plays in this tournament up till now. They've adopted the formula of just trying to save wickets in the power play and then go about it. And also with the openers, one tries to play the whole 20 overs. In this case, could be Asad Shafiq. Similar approach as we see from Pakistan international side. Yes, you can say that. That's hammered away. So you will get deliveries like these where you can cash out on a boundary and wrap the over like this. 35 for no loss. बलूचिस्तान को अच्छी इब्तिदा मैसर आ गई है। असद शफीक जिनका बेहतरीन स्कोर इस चैंपियनशिप में 43 रहा है, आज उससे आगे का देख रहे होंगे। हसीबुल्लाह भी को खातिर खा बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके। दोनों खिलाड़ी ज्यादातर मौके पर सेट होने के बाद आउट होते रहे। शान मसूद ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं इस टीम में, और ये पिछले ओवर में एक बहुत ही उम्दा पुल शॉट खेला था जो कि खासा है। लेग साइड में ये पुल शॉट, हुक शॉट खेलना जो है उस पर ये खुदादाद मलका है हसीबुल्लाह का। अच्छी फील्डिंग उमर अमीन की। ये इब्तिदाई अयाम है हसीबुल्लाह के करियर के। 50 ओवर की क्रिकेट में इन्होंने अपना लोहा मनवाया है, पाकिस्तान कप में भी और अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी। लेकिन ये T20 जो तर्ज है, ये फॉर्मेट दरअसल इसमें अभी ये सीख रहे हैं, क्योंकि जरा सा मुश्किल पेश आती है। रॉन्ग एंड पर थ्रो आई।
खासतौर पर वो जो बैट्समैन टेक्निकली बेहतर होते हैं, इनको कम उम्र में मुश्किल पेश आती है ये फॉर्मेट खेलते हुए। शाह जी बिल्कुल, इस फॉर्मेट की डिमांड जो है वो कम्प्लीटली मुख्तलिफ हैं दीगर दो फॉर्मेट से। आपको निस्बतन ज़्यादा वक्त मिल जाता है, यहाँ इतना ज़्यादा वक्त होता नहीं। अच्छा शॉट खेला, 4 रन्स पीछे हटे और शानदार तरीके से टाइम करने में कामयाब हुए। प्लेसमेंट भी आला थी असद शफीक की। ज़्यादा पीछे गिरा हुआ बॉल नहीं था, लेकिन बाउंस क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रू है। ये देखिए असद शफीक ने क्रीज का अच्छा इस्तेमाल किया। मैं आपको थोड़ा सा रूम दिया क्योंकि लाइन ज़्यादा बुरी नहीं थी, लेकिन ये क्लासिकल शॉट असद शफीक का अच्छी निक में नजर आए हैं। एंजॉय कर रहे हैं ओपनिंग इस टूर्नामेंट में। आज दूसरी बार रिवर्स पैडल करने की कोशिश की लेकिन कनेक्ट कर नहीं सके असद शफीक। पावर प्ले खत्म हुआ बलूचिस्तान के लिए 41 के स्कोर पे। अंपायर फैसल अफरीदी अब दोनों टीमों को मुत्तला कर रहे हैं कि फील्ड को वो इस वक्त खोल सकते हैं। वो जो फील्डिंग की पाबंदियां थी वो ख़त्म हो गई 6 ओवर्स की, और मज़ीद 3 फील्डर्स जो हैं वो बाउंड्री पर खड़े किए जा सकते हैं। थर्ड मैन को पीछे भेज दिया गया है। हसन नवाज को डीप कवर है, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग। इस पर उस्मान शिनवारी, इनको अपनी बॉलिंग जारी रखना है। कुछ देर पहले बादल उमड़ कर आए थे लेकिन अब धूप निकल आई है फिर से। बैटिंग निस्बतन बेहतर हो जाएगी। पावर प्ले में ज्यादा रन्स बने नहीं इस टूर्नामेंट में। आज भी 41 रन आए, लेकिन अच्छी खबर यह है कि विकेट कोई नहीं गिरी। शफीक जब विकेट पे होंगे तो आपको कन्वेंशनल शॉट्स मिलेंगे ऑन द अप ड्राइव, लेकिन हसीब ऑफ स्टंप के बाहर बहुत अच्छा खेलते हैं, अपनी रीच का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। ये स्लॉग लगा, लेकिन अच्छे कट शॉट के साथ पावर प्ले का इख्तिताम किया असद शफीक ने। 41 रन आए, सिर्फ 6 चौके लगे, कोई मैक्सिमम नहीं लगा इस दौरान। टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा पावर प्ले का स्कोर 53 रन है, मतलब है कि ज्यादा रन बने नहीं है पावर प्ले में। उठाकर खेला लेकिन इन फील्डर्स पहले गिर गई। उमर मसूद जो पिछले मैचेस में विकेट कीपिंग कर रहे थे, इस वक्त मुतबादिल खिलाड़ी की हैसियत से आए हैं। और शॉट अच्छा खेलते हैं। असद शफीक की इसी खूबी के तहत ऑफ फील्डर खड़ा किया गया है। रोहिल नजीर आज वापस आ गए हैं, और अच्छी खबर यह है नॉर्दर्न के लिए कि खतरा ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद ये डेंगू बुखार में मुब्तला हो गए हैं, लेकिन अब इनकी जो रिपोर्ट्स हैं, दूसरी रिपोर्ट्स, वो उसमें वो ख़तरा टल गया है। इससे ये दस्तयाब हैं, इनको इजाज़त दे दी है डॉक्टर ने क्रिकेट खेलने की। दिलकश स्ट्रोक, ये बाउंड्री शायद ना हो सके, जी हाँ, लेकिन काबिल दीद स्ट्रोक था, बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ अच्छा फॉलो थ्रू हसीबुल्ला। हमने पहले भी देखा हसीबुल्ला कोशिश करते हैं कि अपना फ्रंट लेग क्लियर करें और ऑफ साइड ओपन करें, लेकिन इस मरतबा लाइन और लेंथ ऐसी थी कि उन्हें सीधा खेलना पड़ा। अच्छा टाइम किया, अच्छी कोशिश मेहरान मुमताज की भी। नौजवान खिलाड़ी हैं ये दोनों ही। अच्छा मुकाबला इस वक्त चल रहा है। अब हसीब कोशिश करेंगे कि पावर प्ले के बाद अपनी रेंज थोड़ी सी बढ़ाएं, फील्ड पे गैप ज्यादा हैं। अपनी रफ्तार में तब्दीली की और अच्छी फील्डिंग की।
एक बार फिर उमैर मसूद थे, तो ओवर हुई लेकिन इतनी नहीं कि रन इजाफे यहाँ पर हासिल कर सके। फिर अच्छा राइड किया बाउंस को, फिर अच्छी फील्डिंग थी। जब मैं हसीब की बैटिंग की रेंज के बारे में बात कर रहा हूं तो पावर प्ले हो या ना हो, उनके पास स्ट्रोक्स की इतनी रेंज है कि वो विकेट के दोनों जानिब बाउंड्री हासिल कर सकते हैं स्वीपर्स की मौजूदगी में भी। और क्योंकि अब गैप ज़्यादा हैं तो अब डॉट बॉल्स भी निस्बतन कम होंगी, इसलिए रन स्कोरिंग उनकी जो है वो बढ़ सकती है यहाँ पर। ज्यादा जोर से हिट करने चले गए, खुद को गेंद से दूर कर लिया असद शफीक ने। बलोचिस्तान की एक बैटिंग में कामयाबी का राज ये भी रहा है कि हर वक्त ही इनका एक इनकी दाएं बाएं हाथ की पार्टनरशिप रही है असद शफीक के साथ। हसीबुल्लाह होते हैं, बाद में 2 विकेटें जब इनकी लगातार गिरी हैं, फिर शान मसूद नंबर 4 पर आते हैं और बंगल ज़ईफ वन डाउन आ जाते हैं। तो उससे एक तो मुखालिफ टीम के बॉलर को परेशानी रहती है अपने समत के मामले में, और दूसरा आजकल जिस तरह रवाज हो चला है कि एक तरफ से आमतौर पर बाउंड्री का फासला कम होता है, तो जब राइट लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन होता है तो हर वक्त ही एक बैट्समैन यहाँ आपको कम बाउंड्री मिल जाती है, आपको कम फासले की बाउंड्री, और ये बहुत बड़ा एज होता है। रात यही पाकिस्तान ने भी हिकमत अमली अपनाई अपनी इनिंग्स के दौरान, खातिर खा उसमें कामयाबी मिली। यहाँ पर रन हासिल हो गया ओवर थ्रो का। थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई थी दोनों बैटर्स के दरमियान। 6 रन आए इस ओवर में 7 के बाद 47 पर कोई विकेट नहीं। असद शफीक ने धीमे हाथों से खेला था, बॉल हसीब की थी, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन ओवर थ्रो सलमान इरशाद ने देखे बगैर थ्रो कर दी, की वजह से 1 रन मिला। जो आप बात कर रहे थे पिछले ओवर में राइट लेफ्ट की कॉम्बिनेशन, और ये टैक्टिक्स होती हैं और मैनेजमेंट टीम और जो एनालिस्ट होते हैं वो बहुत केयरफुली ये प्लान बनाते हैं। बारिश के बाद जब सूरज निकलता है तो ये पोठोहार पर्वतों की इसकी रंगत और हुस्न ज्यादा निखर जाता है। ये इस्लामाबाद का वो पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर बहुत बड़ा जंगल है, आज भी आपको मिलता है। यहाँ भी सूरज निकलने के बाद इस मैदान का भी हुस्न निखर आया है। बैटिंग अब अच्छी हो सकती है, गेंद ज्यादा बेहतर नजर आना शुरू हो जाती है। ये आप देख सकते हैं कि आसमान में ये कहीं कहीं बादलों के टुकड़े मौजूद हैं, लेकिन अब रंगत कितनी ज्यादा निखर गई है, गहरा नीला आसमान। अब ऐसे में आपको बैटिंग करना और ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि जो हद निगाह है इस इलाके में ये शायद पाकिस्तान के तमाम इलाकों से बेहतर है। आज भी बिल्कुल आपको धुंध कहीं नजर नहीं आएगी ट्रैफिक बढ़ जाने के बावजूद, और खासतौर पे बारिश के बाद तो आपका जो हद निगाह है वो बहुत ज्यादा साफ सुथरी हो जाती है और दूर तक आप देख सकते हैं अगर किसी ऊंचाई से देखें। खूबसूरत मौसम है यहाँ का। और शानदार तरीके से खेला, जोरदार छक्का लगाया और गेंद शुरू से आखिर तक गई। असद शफीक ने अब ये किया है फैसला कि वो महाज करवाएंगे। लिस्ट सेंचुरी भी मुकम्मल हो गई इस छक्के के साथ। अच्छी फॉर्म में नजर आए असद शफीक, ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं किया, लेकिन आज लगता है कि वो मूड में है। सीधा साइड स्क्रीन से जाके टकराई
शफीक ज्यादा पावरफुल प्लेयर नहीं है, लेकिन जब फुटवर्क और टाइमिंग ऐसी कमाल की हो तो गेंद खासी दूर जा सकती है, और यही दिखाया असद शफीक ने। आजा आजा। T20 में जो नया वर्ल्ड ऑर्डर देखने सुनने को मिलता है, उसमें अक्सर जो बैट्समैन हैं, खासतौर पर गैर मुल्की बैट्समैन, अब वो छक्के के बाद फिर एक छक्के की कोशिश करते हैं। छक्के के बाद अगली गेंद पर जो एक रन लेने का एक रिवाज समझा जाता था वाइट बॉल क्रिकेट में 50 ओवर के मैचेस में, वो अब उसके इनकार कर रहे हैं। यहाँ मिस फील्डिंग पर एक रन का और इजाफा हुआ। जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अब जो मॉडर्न डे क्रिकेट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, और बैटर्स का जो माइंडसेट है, अगर आपने एक दफ़ा बॉलर को आड़े हाथों ले लिया है तो उस ओवर को एक बड़े ओवर में तब्दील कर दें और उनको दोबारा सर उठाने का मौका ना दें उसी ओवर में। या और बैट्समैन जो हैं वो अब बॉलर से आगे भी सोचने लगे हैं कि अगर आपने एक बार आगे बढ़कर हमला किया, छक्का लगाया, तो अगली गेंद आपको शॉट आ सकती है, खासतौर पर फास्ट बॉलर की। और ये अच्छा पैडल स्वीप कर दिया फाइन लगी जानिब, और उतनी उम्दा फील्डिंग भी। 2 रन बने, तीसरा लेना चाहते थे हसीबुल्लाह, लेकिन फील्डर थ्रो करने की पोजीशन में थे। अच्छी क्रिकेट ऑल राउंड। 8 ओवर्स के बाद बलूचिस्तान का मजमुआ है 59। पांच ही बॉलर्स का इस्तेमाल किया अभी तक नॉर्दर्न ने। सुहेल तनवीर 2 ओवर्स में 10 रन दिए। सलमान अशार ने सिर्फ 1 ओवर किया, महंगे साबित हुए, आज नए बॉल से लेकर आए उन्हें, लेकिन डेथ में वो अच्छी बॉलिंग करते हैं। अभी तक विकेट्स का कॉलम खाली है नॉर्दर्न की टीम के लिए। टॉस पे वो 150 रन तक रोकने का सोच रहे थे, लगता है कि बलूचिस्तान 160 और 170 का सोच रहे थे। लगता है बलूचिस्तान अपनी हिकमत अमली में इस वक्त तक कामयाब है, लेकिन ये गेम काफी जल्दी तब्दील हो सकता है। ये हमने इस टूर्नामेंट में भी देखा है। T20 गेम मैच की जो इनिंग्स है वो जल्दी अपना रुख तब्दील कर सकती है। आमिर जमाल 8 मैचों में 8 विकेट्स, महंगी इकोनॉमी और महंगी एवरेज है, लेकिन अभी करियर के आगाज में है बिल्कुल। अच्छा स्क्वायर ड्राइव, एक ही रन यहाँ पर बना पाएंगे, लेकिन अब पांव दबाने की जरूरत है हसीबुल्लाह खान को भी, जिनका स्ट्राइक रेट इस वक्त 100 पर है। असद शफीक कोशिश कर रहे हैं कि उन पर दबाव ना आए, लेकिन अभी इनफॉर्म बैट्समैन है। बड़ी लंबी बैटिंग लाइनअप है। ये देखिए, ये पर तोल रहे हैं यहाँ मंगल जईबी और शान मसूद, इसके अलावा हारिस, अमाद भट्ट इस टीम में एक और अग्रेसर हैं जो बहुत लंबे लंबे छक्के लगाने की अहलियत रखते हैं। ऑन द ऑफ खेला, सीधा गेंद उमर अमीन के पास आई। आज फील्डिंग के म्यार के बारे में क्या कहेंगे? नॉर्दर्न की फील्डिंग जो थी कल इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, खासतौर पर ग्राउंड फील्डिंग। सेंट्रल पंजाब के बैट्समैनों को काफी रन उन्होंने हत्या किए। टूर्नामेंट के आगाज में तो फील्डिंग का मयार बहुत शानदार था, लेकिन बैक टू बैक मैचेस की वजह से लग रहा है कि कुछ खिलाड़ियों पर उसके असरात हुए हैं, और पिछले 2-3 रोज से फील्डिंग का वो मयार नहीं है जो शुरू के 4 दिनों में था। नॉर्दर्न ने भी सफर किया। एक और अच्छा शॉट, फील्डर पहुंचने में कामयाब हुए। मुबस्सिर खान दूसरा रन के लिए भी पलट आए। असद शफीक एक मरतबा फिर विकेट की दाद देनी होगी। जिस तरह का बाउंस है यहाँ पर, ये देखिए बिल्कुल सिर्फ टाइम किया, कलाइयों को मोड़ा। यहाँ भी फील्डिंग बेहतर हो सकती थी, लेकिन विकेट की क्वालिटी की वजह से जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड है वो इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा नजर आया। बहुत ही क्लोज मैचेस देखने को मिले हैं, यके बाद दीगरे
अच्छे मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। ये सिर्फ अच्छी विकेट का कमाल है। ऑन द फिर खेला और इस बार शायद नहीं पहुंच सकेंगे। उमर अमीन ने बॉडी उम्दा थ्रो की और टीवी अंपायर से रुजू कर लिया गया है, लेकिन असद शफीक ने खुद चलना शुरू कर दिया। वो जान चुके हैं अपनी किस्मत का हाल। शायद उमर अमीन ने हमारी बात सुन ली फील्डिंग के बारे में और उन्हें जल्द ही हमें दुरुस्त कर दिया कि फील्डिंग अभी भी अच्छे मयार की है। कप्तान उमर अमीन हमेशा से बहुत अच्छे फील्डर रहे हैं और डायरेक्ट हिट मिड ऑफ से असद शफीक काफी दूर रह गए, बिल्कुल बमुश्किल फ्रेम में आ सके। उन्हें इस चीज का खुद ही अंदाजा था, लेकिन इस विकेट का क्रेडिट नॉर्दर्न के कप्तान उमर अमीन को जाएगा। उनकी शानदार थ्रो ने इस खतरनाक ओपनिंग पार्टनरशिप का खात्मा कर दिया है। और असद शफीक जो आज मूड में लग रहे थे और लग रहा था कि वो इस टूर्नामेंट का अपना बड़ा स्कोर बनाएंगे, किस्मती से रन आउट हो गए। 34 रन बनाए बलोचिस्तान 62 पर 1। पहले मैच में बड़ी दिल मोह लेने वाली इनिंग्स खेली थी मंगलजई ने, लेकिन उसके बाद से ये ऐसा लगा है जैसे अपने रास्ते से अपना रास्ता भूल गए हूँ। 19 मैचों में 367 रन इनके क्रेडिट पर हैं। स्ट्राइक रेट अभी बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन दिन ब दिन जो है ये पेशकदमी कर रहे हैं। इनका करियर जो है वो सही रुख पर आगे बढ़ रहा है। फ्रंट करना पड़ा एक बार फिर, अच्छा बाउंस। और ऐसी आवाज जो है ये फास्ट बॉलर को पसंद होती है बल्ले पर, जब गेंद जाकर जोर से लगे। रनिंग देखिए, असद शफीक काफी तेज भागे, लेकिन ये जो एंगल उन्होंने चेंज किया है उसकी वजह से ज्यादा फासला कवर करना पड़ा। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर वो सीधे भी भागते तो आउट थे। मिस जज कर गए इस बॉल की रफ्तार को और उमर अमीन की फुर्ती को भी। उमर अमीन ने कल 2 चौके यहाँ पर वो मुखालिफ टीम को दिए गए थे, लेकिन आज वो ज्यादा मुस्तैद हैं, आज ज्यादा तेज काम निकले। अच्छा ओवर आमिर का, जिसमें सिर्फ 4 रन बना सके बलूचिस्तान के बैट्समैन और विकेट उसके अलावा गई 63 पर 1। महरान मुमताज आज अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। शुरू के मैचेस के बाद ये भी लगता था कि पटरी से उतर गए हैं, लेकिन आज उमर अमीन के कप्तान बनने के बाद ये भी बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं। यहाँ पर खासा आगे निकल गए और रन आउट हो जाएंगे। ओह, बाल बचे। ये गेंद रोकनी चाहिए थी महरान मुमताज को। आमिर जमाल को दोष दे रहे हैं, हालांकि महरान मुमताज की ये गलती थी जो कि इस थ्रो को कलेक्ट नहीं कर सके। देखिए, बॉल वॉचिंग कर रहे हैं हसीबुल्लाह, क्योंकि बॉल थी बंगलजई की, लेकिन हसीब बॉल को ही देखते रह गए। उठाकर खेला और गेंद ऑल द वे गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। ये पहला छक्का लगाया हसीबुल्लाह खान ने, लॉन्ग हैंडल का उन्होंने इस्तेमाल किया। अभी भी शायद उसी रन आउट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हसीबुल्लाह के पास रेंज है बड़ी शॉट्स की, तवील कामत है, ज्यादा रेंज है। फ्लैटी डिलीवरी थी, पिच तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन अपना शॉट खेल गए
और इसी का उन्हें फायदा हुआ। इन स्टैंड्स में जाके गिरी। ये देखिए स्टंप से भी थोड़ी सी बाहर थी, ज्यादा बुरा बॉल नहीं था, लेकिन हसीब का टैलेंट है कि वो अच्छे बॉल को भी बड़ी हिट लगा सकते हैं। शानदार स्ट्रोक। इसे उठाकर खेल दिया, 4 रन बन जाएंगे। ये बिल्कुल भी अच्छी गेंद नहीं थी। हसीबुल्लाह जो है वो बर वक्त गेंद पर बल्ला लाए और दरअसल अपनी मदद उन्होंने खुद ही की। इस मरतबा तो बिल्कुल ये गिफ्ट थी। तेज बॉल कर दी लेग स्टंप के बाहर की लाइन पर। कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी हसीब को। यहीं बाउंड्रीज लगाना शुरू हो गए हैं। इनके सामने 2 बैट्समैन जो हैं वो तकरीबन रन आउट हो चले थे। उसके बाद हसीबुल्लाह ने अब ये सोच अपनाई है कि ज्यादा दौड़ने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। तो कुछ बात हो जाए यहाँ रावलपिंडी में पिचेस की, जो आप आमिर बाउंस का जिक्र कर रहे थे। आमिर भाई ये पहले रावलपिंडी में इंडी क्लब ग्राउंड पर टेस्ट मैचेस होते थे, वहाँ स्पिनर्स को बड़ी मदद मिलती थी। अब्दुल कादिर ने वो जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ जितवाया था। सल्लू सल्लू थ्रो मार दे कुछ बताइए, पिंडी की बाकी पिचेस में भी बाउंस होता है? पिंडी के क्रिकेट का कल्चर बिल्कुल चेंज हो गया जब यहाँ पे ये स्टेडियम बना था 90 की दहाई में, क्योंकि उससे पहले यहाँ का जो खित्ता था वो स्पिनर्स के लिए मशहूर था। ऐसा भी था कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 4 स्पिनर्स खेला करते थे। रावलपिंडी क्लब ग्राउंड की जो पिच थी वो स्पिनर्स के लिए बहुत साजगार हुआ करती थी। लेकिन जब ये पिच बनी तो इसने कंप्लीटली कल्चर चेंज कर दिया रावलपिंडी की क्रिकेट का। और यहाँ पर ये मौका था, बर वक्त आ नहीं सके। फील्डर थे मुबस्सिर और बिल्कुल भी खुश नहीं है। महरान मुमताज का यही ख्याल है कि ये कैच होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लेट रिएक्ट किया। बिल्कुल मिस जज कर गए मुबस्सिर खान। बिल्कुल बॉल की पेस और फ्लाइट को जज नहीं कर सके। देखिए बाउंड्री लाइन से काफी अंदर हैं और गेंद की तरफ आगे ही आगे बढ़ते चले जा रहे थे, जबकि गेंद उनसे दूर भी थी और पीछे भी। लेकिन यहां पर लगता है कि ये बॉल सीधी स्कर्टिंग को जा टकराई है। और शाह फैसल ये इसलिए भी आगे थे क्योंकि ये दौड़कर 2-2 रन्स बलूचिस्तान के बैट्समैन बनाते रहे, इसलिए इस तरफ हम देख रहे थे कि ये बाउंड्री राइडर हैं वो चंद कदम आगे खड़े हुए थे। ये फील्डर का अपना इस्तेहकाक होता है कि वो इस चीज को जज करे कि वो 2 भी ना होने दे और इस तरह की बाउंड्री भी ना होने दे। यहाँ पे मुबस्सिर चूक गए। हाफ स्टेज पर बलूचिस्तान 81 पर 1। boys. 87 for 1, Balochistan. Ebola well set on 42. Seems like a little bit hard work for the batters out there in the middle. Wait for the ball to get a fine connection. That was the 6. Again, just giving enough room. And Iran had all the right to get angry. He came in few inches, Mubassir, and then had to go back. But for no use, traveled for a maximum. He's been given the instructions, Hasibullah. That's what we can gather from here, to bat through the innings after the departure of Asad Shafiq. Unless he can find a different gear later on when you get someone like Shan Masood going great guns. And they have a lot of options. They're spoiled for options. They're a very balanced side. We say it's balanced on paper, and even on field. I'd just like to see Hussain Talat perform a little more with the bat. Otherwise, Ahmad Butt, Haris Suhail, Abdul Wahid, everyone. Picked that up nicely, but he won't get anything more than a single.
should change gears now. 84 of 10. Got ample batting left who love to come out and go for the stroke play. You who can use the long handle. Masood has been in sublime form. Would love to come out and score more runs. Shouldn't be complacent here, Balochistan. They're copy-pasting Pakistan's performance yesterday. 10 overs, 80, and then in the next overs scored another 100. Wickets in hand. Not the same pitch though. Nice looking shot. Great fielding there. Where Masood standing in for Ali Imran. Well, that's one thing you can associate with Northern. They're going to put their hard yards in the fielding. Excellent stop. It was traveling, flying. And Masood there. Not keeping the wickets today. Rohil Nazir is back. Talk about head-to-head between these two teams. I hope Ali Yunus is listening. 6 games between the two. All 6 have been won by Northern. High shot. Should be a catch. Don't drop this one. Man under it. And taken. Umar Amin, the captain, takes it. And they've lost Abdul Wahid Bangalzai. Trying to force a shot. Umar Amin with an exceptional run out early on, and this time he had a lot of time, and these ones are tricky. Just the length, it wasn't there to go over the top, straight down. No problems at the receiving end. Amir Jamal with the breakthrough. You see, this is what happens. You said they need to change gears. It's not his comfort zone. It's not in his textbook, that kind of shot. He's literally thrown his wicket away. 85 for 2. Shan Masood, the new batter, always smiling. He's in such a zone in his career at the moment that he feels he's found his rhythm. He's found probably what he was looking for. He's transformed his game from format to format. And he's becoming a treat to watch now. He always was though, but now in the shortest format as well. Have to bowl that again. We've seen very often that batters have thrown their wickets, but again, it's more about the shot selection. It wasn't a ball to be played on from front foot. Should have gone to play off the back foot into the covers. That hard length that has always tested the batters on the surfaces. They'll have to rebuild again. A partnership, not just that, but also which way they want to go in terms of the score they end up with. 87 for 2. That's Tariq Saeed with his manager. And that I don't know who he is, but he's one of the people who've come here all the way to watch the game. Looks happy, smiling, so I think he's supporting Northern.
उमर भाई आउट हो गया उमर भाई That will be an integral part. Sean and Hasibullah running between the wickets. You're having some trouble to time it to the boundaries. That's the go-to area. It's been exceptional all over the world. Scoring runs in England. Came here, scored 250s already. Whenever he's out there batting, it looks like a totally different surface. Waits for the ball. And a lot of work how he now approaches the T20 format. Ishan Masood, he played a match-winning knock the other day. 53 from him. Took the side to a win, and that too of a chase this season. He looked totally in control. This is a shock. He's actually practiced a lot, and he's played a lot of good strokes. One of them was a reverse sweep 6. Massive one. This is it. She'll remember that. All the shots that he hit, they don't look like slog. He's in complete control of them. And scored a valuable 50. Another good run. The best thing about Shan is he does rotate strike. He times the ball well, but whenever and however he decides to go big, he keeps the shape up. You can see a good balance at the crease, steady hands, stable head, and he holds the shot. That's why he finds some muscle behind it, and distance to follow. More like a jag from him. Always ahead of game. Four. You missed that, and you will put 4 runs on the board for the batting side. He's dived over the ball. The idea probably was right from Salman Ishad, trying to stay within the stumps. But again, the line, the execution. Whenever you miss those on these surfaces, you'll get punished, especially by someone sublime form like Shan. Call is for 2, but they might not get it because the field is quick. 95 for 2. That's what's to come. Haris Sohail, Hussain Talat, Ahmad Butt, all the way. Top order is trying to build up for them. As the Balochistan camp, Junaid Khan playing today, top right. Far left, Kashif Bhatti. And then, of course, the bottom right role to play, Ahmad Butt playing with his beard. Next to him, the captain. Score is for 2. They'll be pushing it really if they get it. Well done by the fielder. Tell me, what do you feel? Things are going to change once we move this tournament to Multan, and your evening game is going to start at 7:30. We've seen that chase has been tough here, or I don't know if the players are not applying themselves, whatever the reason, but then Multan's going to be warmer compared to what Pindi is now after a bit of rain for 2 days. You think that toss will play a major role come evening games under the lights?
I think it'll be a lot better surface if we talk about in terms of batting. Yes, the pace bowlers will have some go. But yes, the evening games, that's one arena where you would love to see how the dew comes in. If not, I don't think it would matter or bring a lot of difference. But it's not that it's going to have a very major say in how the teams would approach the toss. Not really sure. I mean, from what we know of Multan, it's more of dry heat over there. When you go to Karachi, you've got the sea alongside a lot of humidity. Even Lahore would have it. Here, yes, you're right about it, but Multan usually experience dry summer's dry heat. But they've had a lot of rain. In fact, all of Pakistan has had. Sibullah is 3 short of a 50, 47 of 38. Drive, just earning him 1. They'll keep doing that. Khan and Hasibullah. They'll keep rotating strike on a good length deliveries, anything that is a challenge for them. Every now and then would love to go for a boundary. Taq Ahmed, the head coach, has a huge role to play, and you can see that transferring within the team. Arshad Khan as well had a huge role to play in terms of compiling this team. He's not with the team. He's back with his coaching duties at High Performance Academy. Another extra here. He probably messed up with his line when he was trying to shuffle in the box, Shan Masood. Just rattling the bowler for a moment. Balochistan 98 for 2 in 12.4 overs. Shan Masood 7 of 5. Hasibullah 48 of 39. Amir Jamal 1 of 13 in 2.4 overs. It's all happening here. Never miss a moment. That's important between these two. Jam the ball hard into the pad. Shan Masood will still extract a single. If Hasibullah gets these 2 runs here, it will be his first 50. Made his debut in this national T20. It'll be a big moment for him. That's usually the batters in form do. They are searching for all the runs available. Doesn't matter, it comes in boundaries or in terms of singles or doubles. They're looking to score. The intent is there. That's why Hasibullah and Shan would do that to good length balls. $100 up for Balochistan and 100 in 13. Special Nihari, that's what it says. It's a process how to prepare it. I'm not really sure how it's done, but it is the most amazing thing. And Nihari comes from Niharmu, so it can be had in breakfast, can be had in dinner. Usually it's a breakfast item. I have it with a nice hot naan and with some ginger on it. Life sorted. I had it once, about 6 years ago in Karachi. Since then, I really couldn't find the guts to try it again. You didn't just say that. What? Can somebody escort her outside, please?
It's got flour in it, a lot of that, yes. But you don't said, you just pray Moin Khan is not listening to. Did not leave a good impression or taste for me, so it was really hard to eat. I don't know if it was the quality, but definitely was the quality. Overthrows. Get him there. Yes, he does. Well, that is his 50. One way or the other, living dangerously, but he's got his first 50 in T20. Well played. It was due. Hasibullah managed to grab some starts, but really couldn't convert them. Managed to get to 50 on 41 deliveries. He's an all-round package. Yes, he's young, a lot to learn. He's looked very composed whenever he came out to bat. Got wide range of shots, good between the wickets. Calling, pushing for two, but then they abort. Good pick-up throw, good ground covered in the deep by the boundary rider. I can't concentrate on the game, what you just said about Nihari. He doesn't like Nihari. I mean, if anyone's listening, please don't switch us off. Please. I gave it a try, right? But the quality, that was a big question mark for me. So that left an impression. You guys need to change it. Nihari for you for the next 1 week. Every day. Want to give me a heart attack? No, it's nice. It's good. It's good. You just said, let me change my opinion. Help me change it. Direct hit. No, it's not. Direct hit onto Hasibullah. Reminded me of tennis, that shot. Boom. Man did middle that onto Hasibullah. Best part is where he's hit the ball, now he's tapping the same area. Wow. It's like rubbing salt into one. Well done, good. मैं कह रहा हूँ कुछ करके देखूं क्या मिल सकता है कुछ मिले भी Usman likes Nihari. He likes Lobia as well. But that's not anything major because everyone likes him. Everyone likes it. They like it, they love it. The guy at the extreme right, he loves it. I think he's searching for it. Short ball again. It's working hard as Hasibullah trying to hit big but hit it down into the ground. One for the over as well. Did well to manage it. It was rising on to him. Manchinwari, decent pace. Have tried that uppercut probably. Saw him coming down the track. No boundary so far in this over. One delivery to go. That's 4. That is 4. They needed that. We just had a bit of a jet-lagged, moment in the game. It's now 109 for 2 after 14.
Conceding one boundary at the last ball, the last over. That's how significant is to have Shan Masood. And always improvise. He's very keen on watching the cricket. Lovely colours. Fortunately, Sindh doesn't have a match today. It looks like that combination. She was smiling a while ago until she heard you don't like Nihari. Now she's in shock. Nice, nice work. Well done. That's out. Is it? Oh, he's going to the square leg umpire to find out if this was taken cleanly. The ball was dying on the keeper. There's surely an edge there, that's for sure. It seemed like Roel had to do a bit of work diving in front of him. Stepped down very quickly. Faisal Afridi going upstairs to check that. Is it a clean catch? That's the question. The soft signal is out. Let's have a look. Firstly, you have to make sure this is okay. Yeah, it's fine. Hasibullah has been trying to hit the ball big since he's got to his 50. That's an edge there. Sure, he's moving away, making room. And he's got gloves underneath it. Sure, Rohel Nazir has done well. The umpires on the field also think that a soft signal was out. And they've just referred to the third umpire to make sure everything is correct as to what they think. Out. Hasibullah has to depart after scoring 52 of 44. And that reduces Balochistan to 109 for 3. Wicket of the first ball from Sohail Tanveer's new spell. He's got 10 for 1. Haris Sohail, the new batter in. 100th game for Haris Sohail in T20s. 1350s in that. Middle order. They need to accelerate now from here. They've got Hussain Talat, Ahmad Butt to come after this. Then Kashif Bhatti and so on. It's really not acceptable. Short cover is there to stop the single, not to give it. That was a very smart delivery, reflecting the experience Sohail Tanveer has. No pace offered into the pitch. It took forever to arrive. He was trying to block it down the ground. Played the shot quite early. No expressions whatsoever from Sohail Tanveer. If you're looking to win prizes, all you need to do is just log on to the official page of Kingdom Valley, their Facebook page, and you can win exciting prizes over there. Could be your chance, your opportunity.
Good shot. Deliberate, elevated over that fielder at mid-off, and Haris Sohail earns his first boundary. He's really good against that length. Just enough room to free his arms deep into the crease. He knew what length was we're going to bowl. Through the line, glorious drive. Never intended to keep it down. Perfect timing. Have one more in the over, 2 balls to go, and wrap up to 15th over mark. No news on Ali Imran. We'll try and find out and let you know what happened to him, because he was out and down on, I think it was the first or second over, trying to field a backward point. And then he walked off the ground limping, jammed his knee trying to field, overshot this target. And if he is not fit to go, then that's a big dent onto Northern's plans. He's been in good form with the bat. Scored 50 odd runs, very handy and stylish runs the other day, Ali Imran. Looking for 2, looking Coming for back 2. for the second. And that's the end of it. 117 for 3. सोहेल तनवीर का ये आबाई शहर है। बहुत क्रिकेट खेली उन्होंने इस मैदान में। आज अच्छी बॉलिंग भी की है, ज्यादा रन्स नहीं दिए और सेट बैट्समैन को आउट किया हसीबुल्ला को। और ये अपर कट, गेंद दूर गिरेगी फील्डर से, ज्यादा आगे निकल गए थे, जल्दी संभल गए और 2 रन बनाने का मौका मिला मेहरान मुमताज से। तो अभी तक हम कह सकते हैं कि बलूचिस्तान की अच्छी पोजीशन है। अगर वो अच्छी एक फिनिशिंग किक यहां से लगा देते हैं तो ये पहुंच जाएंगे 170-175 रन तक। जहाँ इतना इनको एटलीस्ट करना चाहिए यहाँ से, क्योंकि प्लेटफॉर्म सेट है। 2 अब सीनियर मोस्ट बैटर्स हैं, उसके बाद अमाद बट आने वाले हैं, हुसैन तलत खेलने वाले हैं, तो 170 तो इनके टारगेट होना चाहिए यहाँ से। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से हम बराह रास्त आ रहे हैं। और धोखा दिया बिल्कुल आखिरी मौके पर, अपनी उंगलियों को रोल कर दिया गेंद के ऊपर। गेंद थोड़ी नीचे भी रही। आज एक डिफरेंट अप्रोच नजर आई हमें नॉर्दर्न के बॉलर्स की जानिब से। काफी पर्पस से बॉलिंग कर रहे हैं। हमने देखा बहुत चेंज ऑफ पेस हमें नजर आया। एक बार फिर यहाँ पे रोल करते हुए फिंगर्स चिनवारी बॉल के ऊपर, यही शायद ये सजेस्ट वगैरह थोड़ा नीचे भी बॉल रह गया। लंबे कद के बैट्समैन के लिए वैसे भी जब गेंद नीचे रहे तो और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। शान मसूद बहुत ज्यादा झुककर बैटिंग नहीं करते हैं। यहाँ काफी क्रिकेट उन्होंने इस्लामाबाद और रावलपिंडी की पिचेस पर खेली है। यही वजह है कि बैकफुट पर हार्ड पिचेस पर ज्यादा अच्छा इनका रिकॉर्ड है। यहाँ एक बार फिर अच्छी बॉलिंग उस्मान शनवारी की जानिब से। रूम नहीं दे रहे हैं और हमने यही देखा है कि जब भी रूम दिया है बॉलर्स ने तो उनकी पटाई हुई है। यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि बैटर चांस लें, रिस्क लें, यही शायद सही तरीका है। दाद देनी होगी सोहेल तनवीर को, जिन्होंने बहुत शानदार बॉलिंग की है इनके साथ, और उसकी उनका देखा देखी बाकी बॉलर्स ने भी बहुत शानदार बॉलिंग की है। 3 फील्डर्स ऑन साइड पे डीप में मौजूद हैं, फाइन लेग सर्कल में। 3rd और डीप कवर
उस्मान खान शिनवारी के लिए। शायद थोड़ा सीखना होगा अर्लियर मैचेस से। अगर हम देखें तो ये वाला शॉट हमें इतनी कामयाबी से देखने में मिला नहीं है बैटर्स की जानिब से। वो बैटर्स सक्सेसफुल रहे जिन्होंने सीधा मारने की कोशिश की, एक बार फिर कॉर्नर ढूंढते हुए, और बॉल थोड़ा नीचे भी रह गया। तो ये वो पिचेस नहीं है कि जहां पे आप फ्री फ्लुएंट इस तरह के शॉट्स मारते रहें। आपको प्लान करनी पड़ती है इनिंग, पेस करनी पड़ती है इनिंग। सबसे बेहतरीन एग्जांपल अली इमरान की देखी हमने इस टूर्नामेंट में, जो इनिंग उन्होंने आखिरी मैच में यहाँ खेली। बहुत शानदार सीधे शॉट्स मारे और रन्स हासिल किए। तो उनसे ही सीखना पड़ेगा बाकी बैटर्स को कि ऐसी पिचेस पे कैसी बैटिंग करनी है। केपी जब आप चेस करने गए थे पहले मैच में तो बहुत गलत बैटिंग कर रहे थे, बड़ी हिट्स मारने जा रहे थे। जितना सीधा खेलेंगे उतने सक्सेसफुल होंगे आप इन पिचेस पे। अच्छा खेला सीधे बल्ले के साथ हारिस और शान। बिल्कुल ही इनका आप कह सकते हैं कि 180 डिग्री का फर्क है इनकी शख्सियत में। हालांकि शान मसूद जो हैं वो हारिस जितने शायद टैलेंटेड नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने मेहनत से अपना ये मकाम बनाया है। बड़ी तनदेही से अपनी क्रिकेट खेलते रहे हैं। दूसरी जानिब हारिस बड़े बासलाहियत थे और इनसे बड़ी तवक्कात थी हारिस से, लेकिन वो पूरी हुई नहीं। बाल बाल बचे वाइड गेंद से, रफ्तार कम किया उस्मान शिनवारी ने। उनका बड़ा उम्दा ओवर, सिर्फ 4 रन इससे गए 121 पर 3। छह बॉलर्स का इस्तेमाल किया अभी तक कप्तान उमर अमीन ने। 3 ओवर्स किए सोहेल तनवीर ने, 4 ओवर्स उस्मान शनवारी अपने मुकम्मल कर चुके हैं। आमिर जमाल ने भी 3 ओवर्स किए और ख़ुद भी एक अच्छी ऑप्शन है। मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं उमर अमीन, अगर ज़रूरत पड़े तो बॉलिंग कर सकते हैं। अच्छी कप्तानी की है क्योंकि ये बलोचिस्तान की साइड बहुत बड़ी साइड है और उनको रिस्ट्रिक्ट करना छोटी बात, आसान बात नहीं है। बल्ले के आसा ऊपर लगी यहाँ, और दूसरी जानिब जो नॉर्दर्न की बैटिंग है उसमें हमने इतना ज़्यादा तसलसल नहीं देखा है। अली इमरान ने अच्छी बैटिंग की है यकीनी तौर पर। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि किसी हद तक जो यहाँ पर नवाज से नए खिलाड़ी उनने मुतासिर किया। एजाज अहमद जो हैं वो ज़्यादा वक्त उनका परेशानी में ही गुजरा है। उनका ये पहला सीज़न है, इस टीम के हेड कोच बने हैं, लेकिन अभी और इस शॉट के बाद यकीनी तौर पर एजाज की परेशानी में और ज़्यादा इजाफा होगा। बैकफुट पर गए, ये ट्रेडमार्क कट शॉट है शान मसूद का, और स्क्वायर के पीछे खेलना उनको पसंद है ऑफ साइड में। क्या शानदार शॉट, ये बहुत ही एक्सपीरियंस शॉट है। ये रूम देते हुए अपने आप को टाइम किया, ज्यादा जोर से मारने नहीं गए। फ्लैट बैट से 4 रन हासिल किए। बहुत ही कमाल बैटिंग करते हैं, बहुत फिट हैं। और जैसे आप आगे जिक्र कर रहे थे इनकी प्रोफेशनलिज्म का, ये ऐसे प्लेयर हैं जो सीजन के अलावा भी अपने आप को बहुत फिट रखते हैं और यही एक अच्छे क्रिकेटर, एक अच्छे प्रोफेशनल की निशानी है। और इनकी जो दिलचस्पी है वो सिर्फ क्रिकेट तक महदूद नहीं है। ये लेग साइड के बाहर वाइड गेंद हो गई। शान मसूद वो फुटबॉल में बहुत बेपनाह दिलचस्पी है और इतनी ज़्यादा मालूमात हैं इनकी फुटबॉल और फुटबॉलर्स के मुतालिक कि आप हैरान रह जाएंगे। याद है 2010 का जब फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा था तो ये डॉयचे वेले के लिए
ये फुटबॉल पे तबसरा करते रहते हैं, फुटबॉल वर्ल्ड कप पे। यहाँ स्पोर्ट्समैन है, एथलीट है, तो सारे स्पोर्ट्स का ही शौक रखते होंगे। एक बार फिर कट शॉट खेला, एक बार फिर 4 रन मिल जाएंगे। निहायत शानदार बैटिंग शान की। या पेस को यूज करते हुए ये बहुत सेंसिबल बैटिंग है। तेज बॉल किया था जिससे सिर्फ टाइम किया है, प्लेसमेंट भी शानदार रही। थोड़ा रिस्की शॉट जरूर है, लेकिन जितनी अच्छी फॉर्म में शान मसूद है, हर बॉल को मिडल कर रहे हैं और प्लेसमेंट कमाल की रही। 4 रन हासिल किए और ये इतना दिलचाहा शॉट है। ये जब कट खेलते हैं, इस बार गेंद जो है वो लेग स्टंप के बाहर से इन्होंने कट कर दी। ये कम देखने को मिलता है। अब थर्ड मैन को पीछे हटा लिया गया। फाइन लेग पर जो सलमान थे उनको आगे लाया गया दायरे के अंदर। लेकिन क्या अभी भी आमिर जमाल यही लाइन रखेंगे, यही लेंथ रखेंगे राधा? और फाइन लेग के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधा हाथों में मार गए। और अंपायर फैसल अफरीदी ने लेग बाई पर इक्तिफा किया। यहां ऐसा लगा था कि जैसे ये बल्ले की आवाज आई हो। रोहेल नजीर की अपील और बॉलर की अपील से ऐसे ही लगा जैसे बल्ले से बॉल लगा है। एक्शन रिप्ले में देखना होगा। ये बैड ही है। अच्छा डिसीजन अंपायर की जानिब से। आमिर जमाल शश्तर रह गए, लेकिन बिल्कुल सही फैसला था अंपायर फैसल अफरीदी का। बहुत अच्छी अंपायरिंग फैसल अफरीदी की जानिब से। अंपायरिंग का म्यार बुलंद रहा है। और ये उम्दा शॉट है, निहायत आला, बड़ी अच्छी पोजीशन में आकर 2 फील्डर्स के दरमियान खेला। हालांकि मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के दरमियान बहुत ज्यादा बोध नहीं था। ये दोनों पाकिस्तान के बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं। ये देखिए मिड विकेट की जानिब के लिए आसान शॉट नहीं है इस पिच पे। शान मसूद ऑफ साइड पे खेल रहे थे और अब दूसरी तरफ हारिस सोहेल अब मिड विकेट की जानिब खेल रहे हैं। तो ग्राउंड के हर तरफ रन आते हुए इस वक्त बलूचिस्तान के लिए पार्टनरशिप बढ़ के 27 रन पर पहुंच गई है। अगर ये दोनों जाते हैं 19वें 20वें ओवर की तरफ, तो बलूचिस्तान की टीम 180 का हिस्सा भी पार कर सकती है। सलमान खान एक ऐसे बॉलर हैं जो कि बेंच पे बैठे हैं नॉर्दर्न के लिए। खासतौर पर डेथ ओवर्स में उनकी याद ज्यादा आती है। और उठाकर खेल दिया और ये गेंद भी पहुंच जाएगी बाउंड्री पार। एक टिपक आती हुई पीछे हटे और क्योंकि मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर का इलाका बिल्कुल खुला था और उसी को हदफ बना लिया हारिस ने। जहां पहले 2 चौके लगाए शान मसूद ने और अब 2 चौके लगाकर इस ओवर का इख्तिताम किया हारिस सोहेल ने। जब मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर ऊपर हो तो ये आसानी से शॉट है। इस देखिए इवन एक हाथ से हमारा रूम दिया अपने आप को। दोनों फील्डर सर्कल में थे और आसानी से उनके ऊपर से खेल के 4 रन हासिल किए। और अब खेलते हुए बॉलर्स से दोनों बैटर्स, इतने तजुर्बेकार बैटर्स हैं दोनों, उनको बॉलिंग करना इन हालात में बहुत मुश्किल है। और जैसे आगे हम जिक्र कर रहे थे कि सलमान खान बेंच पे मौजूद हैं, उनकी कमी ज़रूर महसूस कर रहे होंगे यहाँ पे, क्योंकि वो ऐसे बॉलर हैं कि जो डेथ में बहुत शानदार बॉलिंग करते हैं, यॉर्कर बहुत अच्छे करते हैं। और एक और बॉलर जो डेथ में अच्छी बॉलिंग करते हैं वो है सलमान इरशाद। 2 ओवर्स में 21 रन ज़रूर दिए, लेकिन यहाँ पे एक अच्छे फिनिश की ज़रूरत है नॉर्दर्न को। यहाँ नॉर्दर्न ने अभी सलमान इरशाद को तरजीह दी है जमान खान पर। हालांकि दोनों को भी एक साथ खिलाया जा सकता था, एक ही तर्ज का इनका बॉलिंग एक्शन है। और ये नो बॉल निकली और दूसरे रन के लिए भी यहाँ पर चले जाएंगे शान मसूद। अब ये फ्री हिट होगी और शान मसूद की और ज्यादा चांदी हो सकती है। ये बहुत ही खराब क्रिकेट है। ऑलरेडी 2 ओवर्स में 21 रन दे चुके थे और अपना पहला ही बॉल नो बॉल किया और प्रेशर अपने ऊपर डेफिनेटली डाली और बड़ा नो बॉल। यहाँ खासा बड़ा स्ट्राइड, लंबे कद के हैं सलमान इरशाद, उनका पाँव ज्यादा
स्लाइड करते हुए आगे निकल गया। फील्डिंग में रद्दोबदल नहीं किया जा सकता। अच्छा यॉर्कर, अच्छा कमबैक सलमान की जानिब से। 4 चौके हासिल किए बलूचिस्तान ने पिछले ओवर में। शान मसूद ने बहुत शानदार तरीके से टाइम किया ऑफ साइड पे, और जब बारी आई हारिस सोहेल की तो ऑन साइड उन्होंने फेवर किया, और ये आखिरी शॉट खराब बॉलिंग। ऐसे 2 बैटर सेट हों तो उनको बॉलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। शान मसूद का आज 147 का स्ट्राइक रेट रहा है, और ये थिक है 4 रन्स। अब बाउंड्रीज आने लगी हैं दाएं बाएं से, और विकेट के अकब से भी शान मसूद के लिए वो 30 के पेटे में पहुंच गए, और वो बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं इस मौके पर नॉर्दर्न के लिए। जी हाँ, अगर आप ऐसे बॉल करते रहेंगे तो रन्स आते रहेंगे। लकी रहे यहाँ पे सलमान इरशाद, ये मिडल भी होता तो शायद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जाता बॉल, लेकिन थिक आउटसाइड एज से भी 4 रन हासिल किए। बल्कि यूं कहना चाहिए कि थिक बॉटम एज था। लेकिन शान मसूद की इसलिए भी तारीफ होनी चाहिए कि ये देखिए 20 गेंदों में 32 रन जो उन्होंने बनाए हैं। अच्छा यॉर्कर पीछा किया शान मसूद का, अपनी विकेटों को छोड़कर तकरीबन बराबर वाली पिच पर पहुंच गए थे। शान ने ये जो रन्स हैं वो ये नॉन पावर प्ले जो मरहला है वहां पर बनाए हैं। इस टूर्नामेंट में उन्होंने पावर प्ले में बहुत कम बैटिंग की है, और सिर्फ 8 ही गेंदें खेली हैं इस सीजन में पावर प्ले में। इसके बावजूद उनका मिसाली स्ट्राइक रेट है, तो उन्होंने अपनी अहलियत साबित कर दी है मिडिल ऑर्डर की बैटिंग में भी। जो बात है तारिक भाई, बिल्कुल 100% आपने सही कहा, और इतने शानदार तरीके से आपने आपको ट्रांसफॉर्म किया है। ओपन करते रहे सारी जिंदगी, लेकिन आप मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए जहां टीम की रिक्वायरमेंट हो वहां पे बैटिंग करते हैं, और यही एक अच्छे क्रिकेटर की निशानी होती है। अच्छा साथ निभाते हुए हारिस सोहेल, शान मसूद, बहुत जरूरी है कि जब आप एक बैटर इतना इन फॉर्म हो तो दूसरा बैटर उसको स्ट्राइक देता रहे रेगुलर बेसिस पे, और यही रोल यहाँ पे हारिस सोहेल निभा रहे हैं, और रन हासिल कर रहे हैं। 149 रन पर पहुंच गए, और वो जो 170 का हिस्सा है वो शायद अब अबूर कर लेंगे। यहाँ उससे आगे भी निकल सकते हैं। अभी इस इनिंग्स में 14 गेंदें बाकी हैं। 14 गेंदों में ये 30 रन भी बना सकते हैं। फिर हट गए थे अपनी लाइन से, ये वाइड हो जाएगी। ऐसा लग रहा है जैसे नॉर्दर्न को समझ नहीं आ रही है कि कहां बॉल की जाए, क्योंकि आउटसाइड दी ऑफ स्टंप करते हैं तो ऑफ साइड पे 4 रन मिलते हैं, मिडिल में करते हैं तो मिड विकेट की जानिब रन मिलते हैं, तो मुश्किलात बढ़ रही हैं। और अगर विकेट भी हासिल कर लेते हैं तो मुश्किलात कम नहीं होंगी, क्योंकि हम बर्ड पैडेड अप हैं, और हम जानते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। बड़े हिट मारते हैं, छक्के मारते हैं। बड़ी अच्छी डिलीवरी, गेंद जो है ये पॉपिंग क्रीज के भी आगे जाकर गिरी। इससे अच्छा यॉर्कर नहीं हो सकता। इस ओवर में अच्छा कमबैक अब तक किया है सलमान इरशाद ने। काफी कुछ एक्सपेक्टेड था सलमान इरशाद से, पहले 2 ओवर में भी महंगे साबित हुए, अब कमबैक में भी काफी रन्स दे दिए। पहला 9 बॉल पे 3 रन हासिल हुए, फिर एक बाउंड्री भी हुई हासिल। परेशानी डेफिनेटली उमर अमीन के लिए है, क्योंकि एक बैटर भी शॉट है। अभी तक हमने अली इमरान को नहीं देखा है कि वो वापस आए हैं, वो बहुत बड़ा धचका है नॉर्दर्न के लिए, क्योंकि मैन इन फॉर्म है वो नॉर्दर्न के लिए। एक और यॉर्कर, इनमें ये सलाहियत है कि 6 यॉर्कर्स जो हैं ये बैक टू बैक कर सकते हैं। सलमान इरशाद ने PSL में भी इस साल अच्छे यॉर्कर किए थे जल्मी के लिए। 151 पर 3। बहुत ही शानदार फॉर्म में रहे हैं शान मसूद, ना सिर्फ रन्स किए और तेज रन्स किए हैं। और आप देख सकते हैं कि स्ट्राइक रेट इस नेशनल T20 कप में
साइम अयूब बहुत ही टैलेंटेड, सिंध से इनका ताल्लुक है, ये भी बहुत कमाल के बैटर हैं। तैयब ताहिर, जैन अब्बास और शान मसूद चौथे नंबर पे। 138 का स्ट्राइक रेट मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए, ये बहुत अमेजिंग है। क्योंकि साइम, तैयब या जैन अब्बास ने ये अपना स्ट्राइक रेट बेहतर इससे बनाया कि वो पावर प्ले में खेलते हुए आए। फाइनल की जानिब रन की आल, लेकिन एक ही रन यहाँ पर बन सका। यहाँ पे नॉर्दर्न चाहेंगे कि कम से कम रन आखिरी 2 ओवर में दिए जाएं। 152 रन पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो 170 तक तो शायद अब जहन बना लेना चाहिए यहाँ पे नॉर्दर्न को कि वो चेज करेंगे, क्योंकि 2 सेट बैटर्स हैं, 43 रन की पार्टनरशिप है। शान मसूद 35 पर खेल रहे हैं और वो किसी मूड में नजर नहीं आ रहे हैं छोड़ने के, उनका अच्छा साथ निभा रहे हैं हारिस। 178 रन पहली इनिंग का एवरेज है इस पिच पे, वहां तक भी पहुंच सकते हैं। 178 है औसत स्कोर इस पिच पर जहां पर ये मैच खेला जा रहा है। ये तीसरा मैच है इस चैंपियनशिप का। हम कह सकते हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान की टीम उसके आसपास है। ये अच्छी बैटिंग पिच है। आज सुबह के वक्त गेंद रुक कर आ रही थी और पिच जो है गेंद निस्बतन कम छोड़ रही थी, लेकिन इस वक्त हालात जो हैं वो बहुत सुधर चुके हैं बैटिंग के लिए। और हारिस जो हैं इनके पास क्या बाउंड्री ऑप्शन हैं, क्योंकि शान मसूद जो हैं इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करते रहे फाइनल के ऊपर से। जो कट शॉट खेलने वाली जो लेंथ है वो सुहेल तनवीर इनको देंगे नहीं, ये बात तो यकीनी है। मॉडर्न डे क्रिकेटर है, मैं ज़्यादा हैरान नहीं हुआ कि आप पैडल स्पीड देखने को मिले हमें यहाँ पे, क्योंकि फाइनल के फील्डर सर्कल के अंदर हैं और हम जानते हैं कि शान मसूद ये शॉट्स मार सकते हैं क्योंकि बहुत फिट हैं और हर तरह के शॉट मारते हैं। और एक चीज़ जो और नॉर्दर्न के हक में नहीं जाती है कि 178 रन अभी तक चेज नहीं हुए हैं, जो एवरेज रन हैं। मारते ही उन्होंने समझ लिया था कि 2 रन मौजूद है और जितने फिट हैं ये आसानी से बना लेंगे। ये शानदार क्रिकेट, ये बेहतरीन क्रिकेट है शान मसूद की जानिब से, और उतनी ही खराब क्रिकेट सोहेल तनवीर और नॉर्दर्न की जानिब से। ये 11वां ये फालतू रन था और जाहिर है कि इस गेंद की भी गिनती नहीं होगी। सोहेल तनवीर का पांव जो है वो तकरीबन उतना ही आगे निकल गया जितना पिछले ओवर में सलमान इरशाद ने गलती की थी। शायद एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हुए यहाँ पे, ये डेस्परेट सिचुएशंस हैं, रन्स बहुत ज्यादा हो गए, किसी तरीके से रोकना चाहते हैं, शायद तेज बॉल करना चाहते थे। यॉर्कर को कहां खेलना चाहेंगे, एक्स्ट्रा कवर की तरफ, ये बॉलर के सर के ऊपर से, और एक और नो बॉल, लो फुल टॉस की 2 रन्स नो बॉल के अलावा बन गए। सोहेल तनवीर का पांव हाथ से आगे निकल रहा है। बेहतर होता है ये पिछली गेंद पर ही अपना रन अप है फरमाइश दोबारा कर लेते। ये खराब क्रिकेट है, ये एक्सपेक्ट नहीं करते आप इतने सीजन प्लेयर से। जब रन्स बन रहे हो तो आपको एक एक रन रोकना है, बचाना है, लेकिन आप इजी रन्स देते रहेंगे तो अपनी टीम के लिए आसानियां पैदा नहीं कर रहे हैं। 159 रन ऑलरेडी हो चुके हैं। जब आप एक मेंटर होते हैं, एक सीनियर प्लेयर होते हैं, तो यंग फास्ट बॉलर्स आपकी तरफ देख रहे होते हैं, तो आपको अपने डिसिप्लिन का मुजाहरा करना है, जो कि यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रहा है। पहले 3 से 4 दिन जो है वो नो बॉल्स हमने कम देखी थी, लेकिन क्योंकि इस वक्त मुकाबला जोरों पर होता है, फास्ट बॉलर कदरे थके हुए भी होते हैं, और जब वो यॉर्कर के लिए अपनी पूरी कुव्वत सर्व कर रहे होते हैं तो पाँव आपका आगे जा सकता है इन ओवर्स में। लेकिन जितनी क्रिकेट सोहेल तनवीर ने अपनी ज़िंदगी में खेली है, 380 ऑड मैचेस खेल चुके हैं T20 लेवल पे, पूरी दुनिया में क्रिकेट खेलते हैं, डेथ बॉलिंग करते हैं, और जब ऐसा मौका आए जब टीम आपकी स्ट्रगल कर रही हो, जहाँ पे एक एक रन रोकना हो, तो आपका जो सबसे सीजन्ड, सबसे सीनियर प्रो होता है, उसको सबसे बेहतरीन बॉलिंग करनी है। 9 रन पहले दे चुके हैं, अभी भी 3 गेंदें बाकी हैं सोहेल तनवीर की। अच्छी डिलीवरी थी, कटर फेंका, शॉट चेक किया हारिस ने। पिछला ओवर भी खासा महंगा था जिसमें 3 नो बॉल के रन्स बने, उसके बाद एक वाइड हुई। इस ओवर में ये 6
रन्स नो बॉल पे आ चुके हैं। एक चीज़ तो बलूचिस्तान के बैटर्स से बॉलर्स ने सीख ली होगी, इस पिच पे आप जितनी वेरिएशन इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपकी बचत हो सकेगी। और हम जानते हैं कि बहुत एक्सपीरियंस्ड बॉलिंग लाइनअप है, जुनैद खान, खुरम शहजाद, अमाद बट, इनको पसंद आएगा यहाँ पे बॉलिंग करना। ज्यादा पीछे हट गए थे, पहले से ही सोहेल तनवीर ने उन्हें देखा, गेंद उनसे दूर गिरा दी। शान मसूद जो हैं अभी तक इनिंग्स को अपने संत के मुताबिक फिनिश नहीं कर सके, पिछली कुछ गेंदों से उनको बाउंड्रीज मिली नहीं है। 52 रन की ये पार्टनरशिप बहुत बड़ा वबाल है नॉर्दर्न के लिए। और उठाकर खेला शान मसूद ने और क्लियर कर गए इसको लेग पर, या फिर इसे रोक पाए नहीं। उस्मान शनवारी ने अच्छी कोशिश की थी, गेंद उनके उछलते हुए हाथ से लगी और फिर बाउंड्री से टकरा गई। यहाँ देखना होगा एक बार फिर, अच्छी एफर्ट की थी यहाँ पे, लेकिन शायद ज्यादा खुश नहीं है सोहेल तनवीर शनवारी से, क्योंकि वो शायद सोच रहे थे कि कैच हो सकता था, ज्यादा लंबे कद के हैं नहीं उस्मान शनवारी। देखिए कोशिश शायद अच्छी लग रही है, एक ही हाथ से उनने कैच की बजाय ये बाउंड्री बचाने की कोशिश की। ये 6 रन से शुमार नहीं होंगे, 4 रन बन जाएंगे अलबत्ता। जहां बहुत हैरानी हुई है इस एफर्ट से मुझे, अगर बेस स्ट्रांग रखते और खड़े रहते तो शायद ये आसानी से कैच हो सकता था। देखिए जंप ले लिया, ये खड़े होके बेस स्ट्रांग रहती फिर भी कैच हो सकता था, लेकिन ऐसा लगता है उन्होंने कैच करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने गेंद को ये पीछे धकेलने की कोशिश की है एक हाथ से। ये हम देख सकते हैं कि गेंद जो है वो उनसे छुटकारा पा चुकी है, और उसके बाद जो है ये देखिए स्कर्टिंग सी पहले गिर के ये टकराई है उस सेसर से, इसे 4 रन ही बनेंगे। मैं फिर वही कहूंगा कि जंप की शायद जरूरत नहीं थी, अगर आप अपनी जगह पे खड़े रहते तो शायद ज्यादा चांस होते कि कैच भी हासिल कर लेते और विकेट हासिल कर लेते। इससे कहते हैं कि ये जो आखिरी ओवर्स होते हैं T20s में, इसमें बाउंड्री लाइन पर आपके लंबे फील्डर्स ही वो कप्तान को तरजीह देना चाहिए होते हैं, क्योंकि चंद इंचेस से भी विकेट और बाउंड्री का जो फर्क है वो जाहिर हो जाता है। चौका, अबे जाने देता, एक तो लगा है बड़ी मुश्किल से, चक्कर हो गया, वो एक लगी है सही, वो रोक लिया। बारह रन सोहेल तनवीर ने पिछले ओवर में दिए और अब सलमान इरशाद आ गए। अच्छा आगाज किया इस ओवर का, बलूचिस्तान की टीम ने पहले ही बहुत बड़ा स्कोर बना लिया है। अच्छी इब्तिदा उनको हसीबुल्लाह ने फराहम की। यासिर शाह जो कप्तान हैं वो खुश हैं इस वक्त, अच्छी बॉलिंग भी कर रहे हैं। जहां टॉस पे इनसे जब बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि 170 प्लस रन हम करेंगे तो थोड़ा सेटिस्फाइड हो जाएंगे, और उस करने में कामयाब रहे हैं। शान मसूद की 44 रन की इनिंग शानदार रही, 52 रन बनाए हसीबुल्लाह ने, 34 रन बनाए यसर शफीक ने। तो एक अच्छी टीम एफर्ट यहाँ पे। परेशानियां डेफिनेटली उमर अमीन के लिए हैं, देखना होगा कि सलमान इरशाद फिनिश कैसा करते हैं। ये जो पिच है यहीं पर 190 रन नॉर्दर्न के खिलाफ सिंध ने बनाए थे, और जवाब में अच्छी बैटिंग की थी नॉर्दर्न ने, उनने भी 180 रन बनाए। तो हम कह सकते हैं कि मुकाबला आज भी भरपूर होगा, क्योंकि उमर अमीन उस मैच में नहीं थे, ये अपना हनीमून पीरियड जो है वो गुजार के वापस आ चुके हैं। जी, और कितना लकी चार्म साबित हुए हैं वो नॉर्दर्न के लिए, आते ही अपना पहला मैच जीते हैं। और यहाँ पे भी अभी मैच से बाहर नहीं हुए हैं। 2 रन की कोशिश होगी यहाँ पे, 2 रन मुकम्मल करने चाहिए। जी हाँ, आसानी से हो जाएंगे।
शान मसूद एक स्ट्रोक के फासले पर हैं। एक और शानदार मिस सेंचुरी से बहुत ज्यादा दौड़ने पर मजबूर किया फील्डर्स को दोनों ने ही। दोनों बड़े स्टाइलिश बैट्समैन। हारिस के पास हमेशा की तरह आज भी बड़ा वक्त है अपने स्ट्रोक्स खेलने का। उम्मीद करेंगे कि ये जो सीजन है इनके लिए अच्छा साबित होगा। और इसे विप कर दिया और फील्डर देखते रह जाएंगे और गेंद शुरू से आखिर तक गई। यही वजह है कि हारिस सोहेल पाकिस्तान के टैलेंटेड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का शुमार होता है। देखिए सिर्फ जैब किया, एक बॉल करीब आने दिया, वेट किया, जैब करते हैं और इतना अच्छा टाइम हुआ बॉल क्योंकि बॉल बाउंड्री लाइन के पार चला गया। ये बहुत ही कमाल का शॉट है। ये पार्टनरशिप अब बढ़कर 66 रन पर पहुंच गई है। अच्छा फिनिश किया कर रहे हैं यहाँ पे बलूचिस्तान के बैटर्स। फिर से उठाकर खेले। ये नो बॉल इस चौके के अलावा थी। 5 रन का और इजाफा और नॉर्दर्न की टीम बहुत ज्यादा खराब क्रिकेट खेल रही है। जी हाँ, सलमान इरशाद ने पिछले ओवर में भी नो बॉल किया था और एक बार फिर नो बॉल किया है। जब आप रन रोकने की तरफ हों और आप ऐसे बॉल कर दें तो बहुत ही बुरा मोराल हो जाता है टीम का। और हम देख सकते हैं ऑलरेडी सारे जो सर झुके हुए हैं, बॉडी लैंग्वेज ऐसी लग रही है जैसे कि ऑलरेडी मैच से बाहर हो चुके हैं नॉर्दर्न। ये इस टूर्नामेंट की 7वीं नो बॉल थी, जिनमें से ये 4 जो है वो इसी मैच में की हैं। नॉर्दर्न की ये 7वीं नो बॉल थी। आज ज्यादा खुश नहीं होंगे समी नियाजी जो बॉलिंग कोच हैं नॉर्दर्न के। अपने दोनों एसेस की हैसियत से सलमान इरशाद भी अब काफी अरसे से खेल रहे हैं। हम इनको जूनियर नहीं कह सकते। इस पिच पर इनको ज्यादा बेहतर बॉलिंग करना चाहिए थी। अच्छा शॉट खेला, क्या दूसरे रन के लिए आना चाहेंगे? आ रहे हैं शान मसूद, लेकिन हारिस का बिल्कुल कोई इरादा नहीं। अब दोनों ही बैट्समैन नॉट आउट वापस जाएंगे। ये बल्ले के कंधे में लगी और इस तरह ये 20 ओवर्स खत्म हो गए। 181 रन बलोचिस्तान ने बनाए। अच्छा स्कोर उन्होंने किया है और ये उतना ही स्कोर है जो भारत ने कल शाम बनाया था पाकिस्तान के खिलाफ। T20 में इतने रन्स बन सकते हैं अगर दूसरी टीम अच्छी बैटिंग करे। जहां एक रिजवान जैसी इनिंग खेलनी होगी ऊपर से और एक छोटे सी कैमियो बीच में नवाज जैसी खेलनी होगी यहाँ पे। और नवाज का ताल्लुक भी नॉर्दर्न से ही है तो एक ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे किसी यंग प्लेयर से। शायद मुबस्सिर का दिन हो आज, शायद उमर अमीन खुद उनका अपना दिन हो और इनका तो डेफिनेटली दिन रहा है आज। शान मसूद ने शानदार इनिंग रही। अनफॉर्चुनेट रहे कि अपने 50 रन मुकम्मल नहीं कर सके, नॉट आउट रहे 45 रन पर। लेकिन ये पार्टनरशिप कमाल की रही। 72 रन की ये पार्टनरशिप रही और अच्छा फिनिश किया यहाँ पे इनिंग को। यहाँ बलोचिस्तान के लिए हसीबुल्लाह खान ने बड़ी उम्दा बैटिंग की, अपनी पहली निस्फ सेंचुरी बनाई T20 क्रिकेट में। असद शफीक ने रन आउट होने से पहले 34 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। मंगल जई आज जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद शान मसूद और हारिस सोहेल का बोलबाला रहा। 72 रन दोनों ने मिलकर बनाए और बलोचिस्तान को एक बड़े मजमूए तक पहुंचने में मदद दी। यहाँ मुश्किलात रही हैं। अगर आप इकोनॉमी भी नजर डालें तो ज्यादातर आपको ज्यादा नजर आती है। 8 रन की इकोनॉमी रही सोहेल तनवीर के लिए। सलमान इरशाद की 12 रन की इकोनॉमी। मुबस्सिर खान एक ही ओवर कर सके, उनकी भी इकोनॉमी काफी हायर साइड पे रही। तो मुश्किलात यहाँ पे डेफिनेटली रही हैं नॉर्दर्न के लिए। सिर्फ 2 बॉलर ऐसे रहे जो विकेट हासिल कर सके, सोहेल तनवीर और आमिर जमाल। बलोचिस्तान की इनिंग्स का आगाज असद और हसीब ने किया और शुरू में हसीब निस्बतन मोहतात नजर आए, लेकिन फील्डिंग का मेयार अच्छा नहीं था। असद शफीक ने अपने शॉट्स खेलना शुरू किए, हसीब ने भी उनकी पैरवी की और ऑन द ऑफ आज बड़ी दिलकश बैटिंग की असद शफीक ने। हसीबुल्लाह पहले से बेहतर फ्लो में लगे, उन्हें फुल शॉट भी लगाए
और स्पिनर को खास तौर पर आज मुश्किल का सामना करना पड़ा, खास तौर पर असद शफीक के सामने जो बेदर्दी से पिटाई करते रहे और फिर उमर अमीन ने आगे बढ़कर उन्हें रन आउट कर दिया। पहली विकेट 62 पर गिरी। हसीबुल्लाह का सफर जारी रहा, स्पिनर्स के सामने उन्होंने बी में बड़ी अच्छी बैटिंग की और बंगल जई दूसरी जानिब आउट हुए, लेकिन बाद बैटिंग का महाज शान मसूद ने संभाला। हसीबुल्लाह कॉट बिहाइंड हुए सुहेल तनवीर के दूसरे स्पेल में और हारिस सुहेल ने भी बड़ी उम्दा बैटिंग की। शान मसूद ने 6 चौके लगाए, हारिस जो हैं उन्होंने 4 चौके लगाए। इस ओवर में भी 4 चौके लगे थे आमिर जमाल के और बहुत मुश्किल हो गया उसके बाद रन रोकना और खासी हद तक मदद की इस पार्टनरशिप की। खुद बॉलर्स ने भी नो बॉल्स की, बैट्समैन के पाले में गेंदें गिराई। उस्मान शिनवारी यहाँ पर कैच का मौका बन सकता था, उसके बाद हारिस ने बहुत उम्दा वार किया, एक के बाद एक बार देखने को मिला और यूं बलोचिस्तान की टीम ने एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया है नॉर्दर्न के सामने। हसीबुल्लाह खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने आज बड़ी शानदार निस्फ सेंचुरी स्कोर की। तो हसीब अपने ख्यालात का इजहार कीजिए इस अपनी बैटिंग कारकर्दगी पे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि जैसे कि पहले मैं विकेट उस तरह का नहीं था, तब के पहले 6 ओवर में उस तरह पे बल्ले पे नहीं आ रहा था, लेकिन मैं और असद भाई यही बात कर रहे थे कि अगर यहाँ पे हम विकेट नहीं देंगे तो बाद में रन आएंगे और पावर प्ले में विकेट नहीं है तो बाद में अल्हम्दुलिल्लाह रन भी हो गए। जी हसीब, आप काफ़ी देर पिच पे खड़े रहे, तो आप क्या मशवरा देंगे अपने बॉलर्स को कि कैसी बॉलिंग करनी चाहिए इस पिच पे? बिल्कुल यही मशवरा दूंगा कि गुड लाइन पे टाइट लाइन करे और यही है कि आगे जो बॉल है वो थोड़े बैट पे आ रहा है, जो गुड लाइन वाले टाइट लाइन वाले वो बैट पे सही नहीं आ रहे, डबल पेस भी हो रहा है और कोई स्किट करता है, कोई रुक के आता है। तो हसीब कुछ अपने मुतालिक बताइए, लोग जानना चाहते हैं कौन आपका फेवरेट बैट्समैन है जो आपका क्रिकेट का सफ़र रहा है, कुछ उसके बारे में आगाह कीजिए। बिल्कुल, मैं तो अपने वालिद साहब और चचा को देखकर क्रिकेट मैंने स्टार्ट की और रिसेंटली मेरा फेवरेट प्लेयर फ़खर जमान है और ऑल टाइम फेवरेट मोहम्मद यूसुफ है मेरा फेवरेट प्लेयर। यहाँ तो बहुत अच्छे फेवरेट्स हैं और आप उनके नक्शे कदम पर चलिए और हम बिल्कुल चाहेंगे कि आप फ़खर और यूसुफ की तरह ही कामयाब इंटरनेशनल क्रिकेटर बने। बहुत बहुत शुक्रिया हसीब। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू थैंक यू। तो अब 182 रन्स नॉर्दर्न को चाहिए हैं ये मैच जीतने के लिए 9.10 की औसत से, और नॉर्दर्न की बैटिंग से पहले होगा एक वक्फा।
Welcome back to the Pindi Cricket Stadium, Kingdom Valley National T20 Cup. Balochistan versus Northern. We've got through the first half of the game, and the run chase is just about to begin. Very talented Hassan Nawaz and Zishan Malik walking out to the middle. Just about to set off on quite a big run chase. 182 they will be looking to get to. Hassan Nawaz has recently made some name for himself with his stroke play. Hasn't scored big in this competition just yet, but he's shown glimpses of his talent. Just 4 matches, 72 runs, 24 the average. Strike rate is already on a higher side, and in 28 is not bad at all. Zishan Malik, former Pakistan under-19 player, 25 years of age now, 615 runs at the average of 27.95, and in 21 the strike rate, 5 half centuries as well. This is a good opening pair at their best. They could really put this run chase off to a flyer. And this is Junaid Khan. Doesn't need much of an introduction. This is very experienced, very, very skillful as well. He's ripe with age and experience. And he's a very, very handy customer with the new ball in particular, on a surface where the ball is, good bounce and carry. 196 wickets, average of 24, and a very good economy as well. It's the same score that Pakistan chased yesterday. 182. No Ali Imran. That'll be a bit of a dent for them. Junaid Khan. Northern straight away off the mark. Around 80 odd was the score at the 10 over mark in the Balochistan innings. Has put up massive 117 in the last last 15 overs, and they've put up this 81 for 1 was their mark on the 10 over window. Started off with not losing any wicket in the power play with 41. 117 for 3 after 15. The acceleration from there was great. So 100 runs or more in the last 10. Exactly 100 in the last 10. They went about it quite methodically, set up the platform. 64 came in the last 5 overs. Not to say that it wasn't without help from Northern. But a few no balls and free hits, a bit of indiscipline as well from Northern. Inside edge, did it carry? Was a noise that it went past the edge. Interesting replay here. It didn't bounce as much as it has been throughout the day. Did it get an edge? There was a noise, but it just bounced right in front of Hasib. Going hard at the ball. I know every batsman is of a different kind. They possess different talents, and there's a certain style that they possess. You've got to play with a bit of planning here.
This is an inside edge. We've seen not the first time that the ball hasn't carried to the keeper. Happened in the morning as well. We saw Rohel, well, that was a slower one, but keepers have had to work hard and dive in front of them to gather the ball. They need to take a leaf out of Balochistan's innings. 41 in the power play without losing a wicket. Just be calm, set yourself, get your eye in. And then probably go after the bowling. But then again, like I said, I started off saying every batsman is different. Some try to attack the opposition. And that's what these two would like to do, especially Zishan is getting an opportunity up in the order. Ali Imran is injured. He's gone for a scan. So you probably, not officially, but probably looking at getting 9 wickets only. As the days wore on, it looks like that pace that was there earlier on in the wicket dying down, like Hasib mentioned at the break. Once again, a cutter. The line wasn't right, but Hasib did mention it's kind of two-pace. Some balls are skidding through, some are stopping. That would suggest the best time to get ahead of the run rate. The required run rate will be in the power play when the ball is harder. Going by what Hasib said, I think run scoring will become even difficult when the ball gets softer after the power play. Vitally important, this passage of play. This time carry and bounce. End of the over. 2 for none. Sikandar was making a good point that Ali Imran, it's more likely that he will be absent. So the task is even more difficult for Northern. And Northern supporters will not be happy about that. On the other side, Balochistan, it makes Balochistan favourite. They're probably banging their head against the wall. Everything that could go wrong did go wrong. Look at that delivery. It died. And this is what exactly Hasibullah was mentioning. Some balls are skidding through. The last one certainly did skid through and went at good height. That makes stroke making a little difficult, even with this hard and new ball. From Shehzad. Another very, very exciting prospect. See that Balochistan looking to attack. Wide first slip in place. He's got hold of that. He'll go to the boundary for 4. Aja, keeper. Only just Zishan Malik is making a comeback, but he's shown his intent very, very clearly. Wants to go hard at the bowling from the get-go. Probably didn't get it off the meat of the bat. This outfield, despite all that rain, is very, very quick. Ahmad Butt put the big dive in, but wasn't enough. It's the season for injuries. A lot of people have got injured lately. Nice, well done. Saw him coming down, dropped it short, given out. Khurram Shehzad strikes. Faisal Afridi has no doubt. Zishan, I don't know why, is quite surprised, but he's got to take that long walk. Zishan, and as soon as that ball went past him, he just turned his back on the umpire and gave an impression that he didn't hit it.
made Faisal Afridi made the call, and he did give him the marching orders. Zishan on his comeback bags a failure. Early blow for Northern, chasing a huge total. This is not a good start. Zishan Malik walks back for 4. Northern 7 for 1. Rohel Nazir being promoted up the order. Youngster with a lot of promise, now 20 years of age, at average of 18 over 51 games and a strike rate of 120. He's batted at different positions in the order. The top of the order, in the middle order, batting at number 3. He needs to start fly pretty quickly. Presence of mind, watching the batsman, what he's doing. Down the wicket, drop it short. And well taken by Hasibullah. Slightly wide of the crease. That angle was always cramping Zishan. And the extra bounce did the rest. On another day, it could easily have flown off the edge over the head of the keeper. But when you're in having a bad run, these things don't go for you. Just mentioning, Sikandar, I'll put you to the spot as well. I haven't seen the ball swing a lot in this tournament. New ball, I don't recall any spell where the new ball bowlers have been able to swing the ball. Wahab Riaz did it briefly, but although he was all over the shop. Can you think of any other? Also to do with the lengths the bowlers have adopted. Arshad Iqbal bangs it in. That's what Khurram Shahzad is doing. I think Sohail Tanveer was getting swing. Someone like Sohail Khan does. They pitch it up. Another single. And that's what they will get. End of the over. 2 gone, 8 for 1. Few people have showed up at the ground. It's pretty hot when the sun has been out, although there's good breeze blowing. This early part of the cricket season remains pretty warm. Talking about the swing, normally if you look around the domestic scene in Pakistan, Sohail Khan is another of those who is good exponent of swing, and this will give you a good idea of little breeze we have. Once again, the call is for 2. Talking about swing, certainly that length wouldn't allow the ball to swing either, like you said, Sikandar, because the wicket has offered good pace, so the bowlers have been looking to put the ball back of a length. Nice and early call, and once you make that decision nice and early, no hiccups, you can get through quite comfortably. See various bowlers from Pakistan having amazing run-ups, smooth actions. Someone you find good to watch.
Can you think of one bowler that you enjoyed the most? Not about his swing, not about his bounce, not about his pace, just the run-up. You see a nice, fast bowler coming your way. Being from Rawalpindi, I've seen a lot of Shoaib Akhtar, especially if you see his run-up side-on. Over the years, if you remember the way he used to gallop in, it used to be a real treat to watch. Another one was Waqar Yunus. A whirlwind action, but smoothest of run-ups, Muhammad Zahid. But one name I would have to mention hails from this part of the world, Muhammad Akram. He used to have a very, very smooth and rhythmic run-up. Not bad either. Can't defend him on that. Junaid Khan has been guilty of bowling the odd no ball here and there, and in white ball format it's really costly. Over the line comfortably, allows Northern some breathing space, because in this power play they have failed to get off the blocks quick enough, and Rohail Nazir will have a chance to have a go at this free hit. Good ball that. He's bowled it full and wide out of Rohail's reach. So he couldn't cash out really on that free hit. Yeah, I totally agree. Two names. One steaming in, that's Shoaib Akhtar. A smooth run up. A freak train, Waqar Yunus. He used to have a hop in his run up earlier on, Junaid. But he stopped that long ago. I remember in Bangladesh in the BPL, I asked him what happened to that. He said just got rid of it for no reason. He used to have that hop. Was it Patrick Patterson used to have that a bit of a running in one, jogging in one place and then start running? Good thing about Waqar Yunus, which I learned and saw time and again, was good batsmen try to keep an eye on your grip. What grip do you have on your ball? He used to keep the ball in his left hand and run in, and at the last moment he would swap. But then there are some bowlers who like to place their fingers right on the seam. They know what they want to bowl. Amir does that. You have Amir Yamin, if you want to point out a few in this tournament. Properly place their fingers on the seam how they want to bowl. But some of them are good. Wasim Akram can swap the ball at any point that they want. Then if you leave fast bowlers, Sikandar Raza, he hides the ball behind his back and bowls. In the end, that's a big shot. Hassan Nawaz in a form of his lifetime. Wow. What a great stroke that was. Slightly back of a length, still on the rise. When it got to Hassan Nawaz, he got underneath it, played his front leg and bang into the stands. Look at those eyes wide open when he saw the length. He knew he was in business. This boy has some talent, make no mistake about that. He may learn in time to progress and convert those starts into meaningful contributions. He has got starts throughout the tournament. He's lucky. There's nobody there at square leg. That ball stopped a bit in the surface. You just get that feeling. He's a smart bowler, Junaid Khan. He won't think about that six. He'll look at how to get you out. 21 for 1. You're talking about the run-ups in the previous over. Khurram Shehzad has got a good run-up as well. He's not very tall.
Beautifully played. Call is for 2. Well done. ठीक है. In the last couple of overs, it looks like the ball has started to find the middle of the bat. And when it does that, that sound is very, very sweet. Quality of the bats these days has gone up several notches. Chance! Direct hit would have had him for all money. Abdul Wahid Bangalzai left, bats right-handed, through left-handed. Had only a stump and a half to aim at. Rohail just plonked his bat, didn't drag it, and I think would have been curtains. Not a good technique there from young Rohail Nazir. Good bowling, भैया. Excellent bowling. He's been in and out of the side, Rohail. He's been swapping places with the other keeping option that Northern have. That also is tough for a player to be sitting on the bench in one match and coming back into another. Had a good partnership with Ali Imran, almost took the game away while chasing the other day. Talking about even Hassan, surely he has talent, but with the scores that we saw, he's got stars, he needs to convert them. His responsibility increases once his eyes set in. If he's got the power play, he's got to attack, which he does. When that is done, field is open, then he's got to take calculated risks. We see him sometimes just pushing that agenda a little too much. Ends up losing his wicket, and usually that's a catch. Men in red. Captain is padded up. Good to see Umar Khan. He's second from right in the bottom row. The left-arm spinner, the famous bowler from PSL, took the wickets of Chris Gale, A.B. de Villiers, Shoaib Malik, Shane Watson, Alex Hales. Chance, direct hit again, miss. What's up? He had all the time in the world, Bangalzai, once again. He's almost given up. Rohail Nazir, he had no chance. This is shoddy from Hassan Nawaz, looking left, right and center, everywhere, but looking at his partner. That was very, very close. The throw didn't miss by much. Oh. Good sharp ball. 25 for 1. इस विकेट पे बहुत मुश्किल है भैया. रोहेल पे गुस्सा कर रहा है. सीनियर पे गुस्सा कर रहे हैं. रोहेल पे गुस्सा कर रहे हैं. Hostile bowling there from the Balochistan bowlers, especially Khurram Shahzad. Getting plenty of lift and carry. The one big blow from Hassan Nawaz. Rohail still new at the crease. But I think they need to make use of the remaining 2 overs of the power play. Balochistan has got plenty of bowling resources and all been contributing well with the ball. Ahmad Bhatt is the latest one, bowling inside the power play. We were talking about the swing earlier. Ahmad Bhatt does have the ability to swing the ball with a relatively new ball. See if he can get some movement or some shape. 84 wickets for Ahmad Bhatt. मैं ओवर वेट तो आपको बताना है, टाइट थोड़ी
bowling over. Inform the captain. Over के बाद. Four 4.1 overs, 26 for 1. Balochistan were 41 in the power play. Like the top of the innings, Sikandar mentioned that the Balochistan, they really had a good template to their innings. 41 in the power play, and by the time the halfway came around, they were 81. So literally from power play, over number 7 till 20, they achieved a run rate of 10 runs per over in the remaining 14 overs after power play. And the man not out, Arslan Masood, destroyer in chief. You've got to find a way to dismiss this man. He takes the game away from you. Didn't even need Ahmad but Hussain Talat later on to fire big shots. Sorry, from Rohail Nazir. Should have been a second run. Notice that Hassan is running with intent. Probably Rohail Nazir hasn't quite recovered from the well, can't call it injury. He had fever. It saps out a lot of energy of yours. He's missing out on those quick runs. Coming back to Arslan Masood, it's just been amazing over a period of time. The short spell from PSL to now, and I'm sure he's been working hard a lot on his T20 game. And the way he constructs his innings, his strike rate today has been 145, and he just faced 11 or 8 deliveries in the power play. So all his knock over 143 strike rate has been outside the power play. And I still remember my co-commentator saying that, don't you feel that Balochistan is going a little slow? But look at that change of gear and acceleration. He's not on field, he's sitting inside. You make a good point, Sikandar, but he's been scoring runs at every level. And now that role in the middle order doesn't come to him very naturally. But how beautifully he's adjusted to it, that is a testament to the kind of game he has. He's a very good all-round game. If he can listen to us, then we'll know. Please step out. We'd like to see more of you. So we can talk about you. Yeah, but playing in the middle order in T20 is not easy. Outside of power play, like he just mentioned, he's found a method and he's converted into runs game after game. Out of 4 knocks, he has only 1 failure in this tournament. 2 half centuries and another unbeaten knock. And striking at more than 140. He's really the glue in that middle order which keeps the Balochistan innings together. 2 maximums as well for him. But a lot of his runs comes through different avenues. That's what you need in the middle order, against pace, against spin, either side of the wicket. He's trying to follow the batsman, who's ended up with an extra delivery. 6.4 is what they're moving at, Northern. And they're closing up to 10 and over and required, with 15 overs to go after this.
runs here. 4 to end the over. A good over ends up with 10 because of that boundary. It's 35 for 1. पांच ओवर्स के बाद दोनों टीमों के दरमियान सिर्फ एक विकेट का फर्क है जो नॉर्दर्न ने गंवाई है आज। जीशान मलिक 4 रन बनाने के बाद आउट हुए। हसीबुल्लाह के हाथों खुरम शहजाद की गेंद पर हसन नवाज से यही तवक्को करनी चाहिए कि ये इनिंग्स को डीप लेकर जाएंगे। निस्बतन खबरदार होकर खेल रहे हैं हुसैन तलत, जिन्होंने ज्यादा बॉलिंग की नहीं है इस क्रिकेट सीजन में। ज्यादा बॉलिंग नहीं की, ना ही ज्यादा बैटिंग का मौका मिल सका है। इस वक्त बिल्कुल अपने विकेटों की निस्फ सेंचुरी के दर पे हैं। 2 शिकार दरकार हैं हुसैन तलत को। किनारा लगा, स्क्वायर ड्राइव करने के लिए गए थे रोहिल नजीर और एक आसान सा कैच गया विकेट कीपर हसीबुल्लाह के पास। तो विकेट कीपर ने विकेट कीपर का कैच लिया। 35 पर 2। थोड़ी सी लूज शॉट थी, आउटसाइड ऑफ स्टंप जरूर थी, लेकिन वेट उनका पीछे रह गया। बहुत जल्दी शॉट खेल गए और पहली गेंद पे कामयाबी हासिल की। अब 1 विकेट की दूरी पे, जैसे आपने बताया, अपनी 50 विकेटें कंप्लीट करने में नॉर्दर्न थोड़े मसलों में पड़ता जा रहा है। ये दूसरा नुकसान उठाना पड़ेगा रोहिल नजीर की सूरत में। 6 बना के वापस नॉर्दर्न 35 पे 2। ये उमर अमीन आजकल अपने जो पुराने इनके साथी क्रिकेटर्स हैं, कई बार उनकी छेड़छाड़ का निशाना बनते हैं। 5 गेंदें अभी पावर प्ले बाकी रह गई हैं खेलने के लिए। नॉर्दर्न की टीम मुश्किल में है क्योंकि एक बहुत बड़ा हदफ उन्हें हासिल करना है, हिमालय को सर्व करना है। खासतौर पर अच्छी इब्तिदा न मिलने के बाद क्या उमर अमीन आज को करिश्मा कर दिखाएंगे? जिम्मेदारी काफी आयद हो गई इन पे, रन्स भी ज्यादा नहीं कर पाए। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ इनके साथ हसन मौजूद हैं दूसरे एंड पे। बेहतर ही होगा कि उसको हाथ मिला के खेला जाए क्योंकि वो अपना स्ट्रोक प्ले जारी रखेंगे। ये चेस के लिए क्या प्लान लेके आते हैं ये कप्तान उमर अमीन के ऊपर काफी हद तक इस चीज की जिम्मेदारी आएगी। यहाँ स्लिप यहाँ पर खड़ी करने का फैसला किया है। हारिस लेग साइड से निकाला है यासिर शाह ने, जो अच्छे कप्तान साबित हो रहे हैं। हमेशा खेल में आगे रहना पसंद करते हैं। ऑफ द मार्क हुए उमर अमीन। ये आप देख सकते हैं गेंद आगे गिरी थी और स्क्वायर ड्राइव करने के लिए गए। ज्यादा अच्छा शॉट नहीं था, पूरी तरह फिट भी नहीं थे रोहिल नजीर। स्टॉप स्टार्ट उनके लिए ये टूर्नामेंट अब तक साबित हुआ।
पहला मैच नहीं खेले, बुखार था, फिर तीसरे मैच के लिए आए, फिर चौथे मैच से बाहर हो गए और आज फिर इनकी वापसी हुई है। आज शायद सबसे ज्यादा रन्स जो हैं ये एक्स्ट्रास के बने हैं, वाइड के, नो बॉल्स के, दोनों एंड से ही। बीच में खासी पेस है और बाउंस भी है आज के दिन। यासिर शाह इस बाउंस से फायदा उठा सकते हैं। अभी ये पर तोल रहे हैं बॉलिंग करने के लिए, जो ही पावर प्ले खत्म होगा ये एक्शन में आएंगे। थोड़ी बेहतर अप्रोच दिखानी पड़ेगी नॉर्दर्न को अगर ये हदफ चेस करना चाहते हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट बेहतर करनी पड़ेगी। उमर अमीन के आने से थोड़ी सी मुस्तहकम ज़रूर हुई है बैटिंग लाइनअप, लेकिन उस तरह एग्जीक्यूशन नहीं नज़र आ रही। वन डायमेंशनल प्लेयर नज़र आते हैं। हसन नवाज ने पिछले मैच में थोड़ा बेहतर एटीट्यूड दिखाया था, आज भी अभी 23 पे मौजूद हैं, लेकिन थोड़ा सा बेहतर कैलकुलेट करना पड़ेगा इस चेस को। अच्छा कट शॉट, लेकिन इससे बर वक्त रोका भी मंगल जई ने। पार्टनरशिप दरकार है। उमर अमीन कई बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स में माजी में इन्वॉल्व रहे हैं। हमने देखा इनके टॉप ऑर्डर में बैट्समैन आते रहे हैं जाते रहे हैं नॉर्दर्न के पिछले कई बरस से, लेकिन मिडिल ऑर्डर में अगर वो खिलाड़ी मुस्तकिल रहा है तो वो उमर अमीन ही रहे हैं। बेशतर क्रिकेटर नॉर्दर्न के इन दिनों पाकिस्तान टीम के हमरा एशिया कप खेल रहे हैं मुत्तहिदा अरब इमारात में। शादाब, नवाज, इमाद वसीम दस्तियाब नहीं थे। आसिफ अली मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं पिछले 2 बरस से, जिन्होंने रात चौके और छक्के लगाए भारत के खिलाफ। हार्डमैन को अब आगे लाया गया है और बोल्ड हो गए। इस गेंद को अपने स्टंप्स पर खेल दिया उमर अमीन ने और हुसैन तलत एक और विकेट ले उड़े। ये तब्दीली बड़ी कारगर साबित हुई यासिर शाह की जानिब से। हुसैन तलत ने अपनी 50 विकेटें भी मुकम्मल कर ली। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे शायद ये लेंथ। अच्छा इनटू द पिच कराया था, बिल्कुल भी रूम नहीं मिला, चॉप ऑन कर गए। वो हल्के हाथों से खेलना चाह रहे थे, लेकिन बहुत बड़ा धचका नॉर्दर्न के लिए। कप्तान की वापसी होगी और अब ये आगे किस तरह इस चेस को लेके चलते हैं, ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। 1 रन बना के वापस 38 पे 3। हुसैन तलत ने नॉर्दर्न को बिल्कुल दीवार से लगा दिया है इस ओवर में। उन्हें 2 विकेटें हासिल की और मुबस्सिर खान वहां मिले हैं अब हसन के साथ। ये देखिए एक बार फिर ज्यादा बाउंस है इस पिच में और उसको कोप नहीं कर सके, बहुत पीछे भी खेलने चले गए थे। बैट का जो एंगल है, एक तो वो विकेटों की तरफ जा रहा था। नॉर्मली जब आप बाउंस को टैकल करते हैं आप कोशिश ये करते हैं बैकफुट पे जाके बैट आपकी नज़रों के सामने रहे, ताकि गेंद अगर रुके भी तो आपके सामने कहीं रुके। थोड़ी सी टेक्निक, इवन दो के बहुत अच्छे टेक्निकल प्लेयर हैं, लेकिन यहाँ पे गलती कर गए।
अपना पहला रन बनाया, खाली जगह पर गेंद को गिराया मुबस्सिर खान ने। हुसैन तलत का ये बहुत ही उम्दा ओवर, सिर्फ 4 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को चलता किया। 39 पर 3 पावर प्ले के बाद। जीशान मलिक ने अच्छी इब्तिदा की थी आई टीम में वापसी के बाद, फिर वो आउट हो गए। उनके साथ आने वाले हसन नवाज अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और सेट हो चुके थे पर विकेट कीपर आउट बिहाइंड होने से पहले, और फिर उमर अमीन को भी उसी ओवर में बोल्ड कर दिया हुसैन तलत ने। तो ये पावर प्ले मुकम्मल तौर पर बलोचिस्तान के नाम रहा। Come on, Shah. एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है जब इतना बड़ा टारगेट आपके सामने पोस्ट हो और आप अर्ली विकेट गवा दें। और उन्हें 3 विकेटें गिराई हैं नॉर्दर्न ने। इस तरह का पावर प्ले मिल नहीं पाया जिस तरह की अमूमी तौर पे तासुर किया जाता है। साइकोलॉजिकली आप एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। बलोचिस्तान को दाद देनी पड़ेगी। यासिर शाह को फ़ायदा उठाते रहे हैं, पुश करते रहे हैं, विकेटें निकालते रहे और अब बॉलिंग पे खुद आए हैं। यासिर शाह ने 3 फील्डर लेग साइड बाउंड्री पर भेजे। एक रन और बनाया मुबस्सिर खान ने। इस पिच पर खासी धूप लगी है। सुबह बारिश के बाद जब सूरज निकला है तो और ये पिच जो है और ज़्यादा हार्ड हो गई है, इसलिए यहाँ पर बाउंस मिल रहा है बलोचिस्तान के बॉलर्स को। और यासिर शाह को इसका उम्मीद की जा सकती है कि ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए ये भी गेंद बल्ले तकरीबन शोल्डर पर लगी। बहुत मोहतात होकर ड्राइव करनी पड़ेगी यहाँ पे बैटर्स को, स्पेशली इनके खिलाफ ये 3 विकेटें जो उन्होंने ATF सदर्न पंजाब के खिलाफ ली थी। बहुत ही आला डिलीवरी की थी। चेंज अप अच्छा करते हैं, गुगली अच्छी तेज करते हैं। आजा 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 आजा। दोनों खिलाड़ी जो हैं इतना ज़्यादा एक साथ खेलने का और भागने का तजुर्बा नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ये एक और विकेट ली थी इन्होंने जब सोहेब मकसूद को आउट किया था सदर्न के खिलाफ। देखिए वो जो बाउंस का जिक्र हो रहा था उसी वजह से हमारे सुहेल मौजूद हैं स्लिप में यासिर शाह के लिए। तो 3 विकेटें पावर प्ले में नॉर्दर्न ने गवा दी। मरीना और T20s में सिर्फ 25% इम्कान ही रह जाता 3 विकेटें गंवाने के बाद औसतन किसी टीम की जीत का। अच्छा कट किया 2 रन के लिए। तो क्या आप समझती हैं कि नॉर्दर्न के भी 25% ही इम्कानात रह गए इस मैच में या इससे ज़्यादा है? 25% से थोड़ा और कम कर लें क्योंकि अली इमरान नहीं है, इसका भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा इन्हें। पिछले मैच में 50 रन किए थे इन्होंने, अच्छे किए थे, तो भी फ़र्क पड़ेगा। और अब बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया इन पे। अच्छा आगाज किया यासिर शाह ने, कोई बाउंड्री बॉल उनने ऑफर नहीं की इस ओवर में। 43 पर 3। ये अक्सर देखा गया है कि T20s में ये बैटिंग की बात होती है कि पावर प्ले में इतने रन्स बना लिए गए और स्ट्राइक रेट कितना है किसका, लेकिन यहाँ पर बॉलर्स जो हैं उनने भी सपोर्टिंग पिच का पूरा फ़ायदा उठाया है इस पूरे टूर्नामेंट में। यहाँ तक हुसैन तलत ने भी भाई 2 खिलाड़ी आउट किए और उठा खेला इसे और यासिर शाह ने कमाल कैच ले लिया।
अभी भी सुपर फिट हैं और यहाँ जमूद को तोड़ना चाह रहे थे हसन नवाज। उन्होंने मिड ऑफ को क्लियर करना चाहा लेकिन ऐसा नहीं कर पाए, रास्ते में हायल हो गए कप्तान यासिर। बड़ा उम्दा कैच, तीसरी विकेट। और ये गेंद ऐसा था कि जिसको इनर सर्कल के ऊपर से मारा जा सकता था, लेकिन शानदार कैचिंग यासिर शाह की। बहुत ही उम्दा फील्डर हैं और इस तरह के कैचेस अक्सर नजर आएंगे। 24 बना के हसन नवाज को वापस जाना पड़ेगा और ये बहुत बड़ा झटका है। 45 पे 4 नॉर्दर्न। तैंतालीस पर चौथी विकेट गिरने के बाद सुहेल तनवीर अब आ पहुंचे हैं। हुसैन तलत ने एक तहलका सा मचा दिया है। उन्होंने 7 गेंदों में 3 खिलाड़ियों को आउट किया और नॉर्दर्न की अब बैटिंग वो कितनी बेहाल है उसका अंदाज़ा यूं भी लगाया सकता है कि सुहेल तनवीर अगर नंबर 6 पर आ रहे हैं तो इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कमज़ोर बैटिंग लाइनअप है। एक्सपोज होगी आज बहुत बुरे तरीके से। एक तो टारगेट बहुत बड़ा था, उसके बाद कोई प्लान नज़र नहीं आया, के बाद दीगरे विकेटें गिरती चली गई इनकी। पावर प्ले में 3 गंवा दी थी, उसके बाद बहुत मुश्किल होता है संभलना। अच्छा कवर ड्राइव किया यासिर शाह, इस बार नहीं रोक सके। उन्होंने डाइव जरूर की लेकिन उम्दा टाइमिंग पाई सुहेल तनवीर ने। पहली गेंद पर उन्होंने चौका लगाया, बड़ा दिल दिखाया सुहेल तनवीर ने। दिलकश ड्राइव थी ये, प्रॉपर बैटर्स वाली। गेंद मिल गया था, ओवर पिच था हुसैन तलत की तरफ से, लेकिन टाइमिंग लाजवाब थी। हेड स्लिप को प्ले में लाना चाह रहे थे। फुल फेस ऑफ द बैट, अच्छा वेट ट्रांसफर किया, प्रॉपर बैट की तरह शॉट खेली उन्होंने और गेंद इस पर नीचे से निकल गई। ये उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन सही तरह से पोजीशन में भी नहीं थे, बहुत जोर से भी हिट नहीं की टाइम करना चाह रहे थे। हर मैच में ही तकरीबन पिच पर वक्त गुजारने के बाद पावर प्ले खत्म होने के आसपास आउट होते रहे। हसन नवाज जिनसे सेलेक्टर्स को खासी उम्मीदें थी, ये बड़े बासलाहियत खिलाड़ी हैं लेकिन अभी शायद इस सतह पर आकर इनिंग्स को किस तरह से तूल देना है और पिच पर अपनी विकेट का भी कई बार बचाव करना पड़ता है। रन्स बनाने के साथ साथ वो ये हुनर सीखेंगे वक्त के साथ साथ, जूं जूं ये बड़ी क्रिकेट खेलेंगे। हसन नवाज उनको पसंद है थोड़ा दूर से ऑन दी अप शॉट्स खेलना। अक्सर ऐसी सरफेसेस नहीं देखने को मिली यहाँ पे कि ऑन द अप शॉट लग सके। पिछला जो अटेम्प्ट इन्होंने शॉट किया था जिस पे आउट हुए हैं वो बिल्कुल निचले हिस्से पे लगी थी, वेट पूरा लेके नहीं गए, कभी कभी कदमों का इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये थोड़ी वो चीज़ें हैं जो आपकी इनिंग्स लंबी करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है। शॉट सिलेक्शन की, एक कैलकुलेटेड इनिंग्स बिल्ड करने का तरीका, ये खेल खेल के आता है। हुसैन तलत
ये ऑलराउंडर हैं। और ये देखिए उमर अमीन, ये तकरीबन अपनी गलती से आउट हुए। और यासिर शाह, ये तो कमाल का कैच था। हुसैन तलत को इससे हौसला मिला होगा, क्योंकि अभी तक सीजन की इब्तिदा इनकी अच्छी नहीं हुई थी। बलूचिस्तान की टीम खासी मजबूत है, इसलिए इनको, क्योंकि अमाद भट्ट भी हैं, तो बॉलिंग और बैटिंग के इतने मौके मिल नहीं रहे थे। आज अमाद भट्ट से पहले लाया गया। ये देखिए कितना ज्यादा बाउंस है, ऐसा स्ट्रीप बाउंस देखने को मिला। इस पर हैरान रह गए, अंपायर की तरफ देखा, इन्होंने खामोशी दिखाई। 48 पे 4। मिड विकेट तगड़ा चाहिए मुझे, मिड विकेट पे जिनी उधर कौन जाएगा मिड विकेट? हाँ पीछे चला जा, पीछे जा, पीछे आ। आज बहुत ज्यादा गिनती नहीं है तमाशाइयों की मैदान में। हफ्ते में पहला वर्किंग डे है। मसरूफ शहर है इस्लामाबाद और रावलपिंडी। सोहेल तनवीर सामने होंगे, यासिर शाह के, जो कि लेफ्ट हैंडर्स को बॉलिंग करना पसंद करते हैं। अभी भी स्लिप में एक कैचर मौजूद है। कोशिश करेंगे कि इनवाइट करने जाएं सोहेल तनवीर को बड़ी शॉट के लिए। कवर लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ मौजूद है, कवर मौजूद है। कीप्स मिड विकेट। और ये शॉट खेला हवा में, गेंद पहले गिर गई असद शफीक से। यहाँ असद शफीक जो हैं वो इशारा कर रहे हैं अपने कप्तान से कि उनकी आंखों में सूरज आ गया था, इसलिए उनने ज्यादा अटैक नहीं किया। हालांकि ये बहुत पहले भी गिर गई थी। काफी फ्लैट शॉट थी ये, बहुत अगर रश भी करते तो डाइव एंड पे करनी पड़नी थी अगर कैच अटेम्प्ट करने जाते। एक तरह से अच्छा है कि यंगस्टर्स को यहाँ पे मौका मिल रहा है, लेकिन मौके का फायदा उठाना उनके ऊपर है। दूसरे रन के लिए कहा था मुबस्सिर ने, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया। मंगल जई ने 50 रन से नॉर्दर्न ने अपने मुकम्मल किए। तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ T20 में पिंडी में सिर्फ बैटिंग की बात नहीं होती, बॉलर्स भी पेश रहते हैं। यहाँ 4 बार ऐसा हो चुका है कि टीमें ऑल आउट हुई हैं। सेंट्रल पंजाब की टीम तो नॉर्दर्न के सामने 79 रन पर ढेर हो गई थी। और पहले मैच में तो दोनों ही टीमें आउट हो गई थी। यहाँ पर नॉर्दर्न की टीम भी इस खतरे से 2-4 है ऑल आउट होने के। मुश्किल थोड़ी नजर आई है बैटिंग की, जहाँ तक बात करते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी शॉट्स आते साथ नहीं लग रही। एट टाइम्स अच्छा बाउंस मिल रहा है, इसकी वजह से ऑन दी अप शॉट्स नहीं लग रही। लेकिन वही बात जो उमर अमीन अक्सर करते हैं कि अप्लाई करना और एक्सिक्यूट करना, वो टीम ज़्यादातर मिस कर रही हैं। और यही नज़र आ रहा है कि शॉट सिलेक्शन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं आई। 9 ओवरों के इख्तिताम पे नॉर्दर्न 52 for 4। काफी बड़े बड़े नाम हैं इस बॉलिंग अटैक में। जुनेद खान, यासिर शाह, लेकिन हुसैन तलत जो हैं उनका नाम इस वक्त चमक रहा है। 3 विकेटें उन्होंने हासिल की। अभी भी उनके 2 ओवर्स बाकी हैं और अभी उनको बॉलिंग जारी रखना है पवेलियन एंड से।
इस हैंड से आउट स्विंग करने में भी बॉलर्स को मदद मिलती रही है। मरीना, कुछ बताइए, यहाँ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आपने भी क्रिकेट खेली होगी, ये बड़ा अच्छा सेंटर रहा है, क्रिकेटर्स को पसंद है यहाँ की पिच की पेस। और आप ये हुसैन तलत सेंट्रल पंजाब के खिलाफ कोई विकेट हासिल नहीं कर सके थे, एटीएफ सदर्न पंजाब के खिलाफ बॉलिंग ही नहीं की और सिंध के खिलाफ भी ये खाली हाथ वापस आए थे। लेकिन आज जो कामयाबियां हैं उनने इनके कदम चूमे हैं। ये अच्छा मौका है, यासिर शाह ने इन पे एतमाद जाहिर किया। तरह की सिचुएशन थी, आराम से अच्छी फील्ड सेट करके दी, एतमाद बॉलिंग में इनको अपने ऊपर वापस आया। जहाँ पे कोई बड़ी गेम आए, जहाँ इनकी ज़रूरत पड़ सके, तो ये रिदम, ये बूस्ट इनको ज़रूर फ़ायदा देगा। जहाँ तक आप पिंडी की पिचेस की बात कर रहे थे, ये ऐसा वेन्यू है जहाँ पे बैटर, बॉलर, स्पिनर तीनों के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है, इसलिए यहाँ पे क्वालिटी क्रिकेट अच्छी होती है। अच्छी पिचेस हैं जिन पे काम भी किया गया है पीसीबी की जानिब से। और ऐसे उठाकर खेला वाइड लॉन्ग ऑन पर यासिर शाह थे, अच्छा जाकर गेम को रोका। यासिर शाह में ये महारत है, और दायरे में हूँ या बाउंड्री लाइन पर हूँ, यकसा रफ्तार से फील्डिंग करते हैं, ऑल आउट जाते हैं। यासिर शाह ये अच्छी गेंद नहीं थी और इसका नतीजा भी भुगतना पड़ा। सोहेल तनवीर ने इसे पुल कर दिया स्क्वायर लेग के पीछे 4 रन्स के लिए। जब आप इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हो कि आपको अच्छी लाइन लेंथ पे विकेट मिल रही हो, तो फिर ये लूजनर देना, ये जाहिर है एक गुनाह ही कह सकते हैं। सोहेल तनवीर के पास शॉट्स ज़रूर अवेलेबल हैं, वो ऐसी लूज डिलीवरीज को बाउंड्रीज के पार पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। थोड़ा सा लाइन में चूक गए, गेंद बाउंस करना चाह रहे थे जिससे इन्हें फ़ायदा हुआ। क्या ये दोनों बैट्समैन इस इनिंग्स को डीप ले जा सकते हैं? क्योंकि इसके बाद बैटिंग ज्यादा ये बची नहीं है नॉर्दर्न की। जैसे कि हम पहले बता रहे थे, ये वाहिद ऐसी टीम है जिसके सबसे ज्यादा खिलाड़ी जो हैं पाकिस्तान की इस वक्त T20 टीम में हैं। T20 नामवर क्रिकेटर्स के लिए जानी जाती है नॉर्दर्न की टीम। शादाब खान, कल के मैच के हीरो मोहम्मद नवाज, जिनको हम जाहिर है वो कौमी हीरो बन चुके हैं कल की कारकर्दगी के बाद। आसिफ अली भी, इमाद वसीम, अनगिनत खिलाड़ी हैं नॉर्दर्न के जिन्होंने T20 क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई है। 60 पर 4 नॉर्दर्न। किया ना इधर आ जाएगा। हाँ इधर आएगा। कट पे 2 चाहिए, उसको बाहर करो थोड़ा सा, कट पे 2 ले लो। शाबाश 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 शाबाश, अंदर आ जा। They are 21 behind Northern at the same stage. And then Northern scored 100 runs from here on to get 181. Will take an effort and a half to get to what they need. That's 182 to win this match. Come on, Shaji. Come on, Shaji.
Shabash, Shaji. Excellent, excellent. Yeah, when you've got Sohail Tanveer playing at number 6, that tells the story of the team. The short of the batters. Shabash, Shaji, Shabash, Shaji. And now I'm not surprised that they're in this position, 61 for 4 without Ali Imran. That was a big loss. This Balochistan side is such a huge side. So much experience in their side, whether it comes to batting or bowling or captaincy even. I think the planning is just haywire at the moment. Okay, fine, Ali Imran is injured, but then Amir Jamal could have come ahead of Sohail Tanveer. But Sohail Tanveer has been sent in for a job. Probably increase the run rate, but he's 14 of 12. They were at the same stage. Gone. We'll talk about that later. Another wicket goes, half the side back in the dugout. That's a shot out of desperation, really, because they need the runs. Yasir Shah strikes with this. Yeah, just came out of the crease and had no planning, no thought process behind this. Just wanted to go big, Mubassir Khan. He's got so much talent, but he needs a lot of work. 8 of 12, 61 for 5. मैंने बहुत स्लो देखी हाँ ले लें आगे फिर मैं आ जाऊँ मैं तो ऐसे भी लेग बिफोर करना Amir Jamal showed some potential with the bat in the last game, but this is a different story altogether. Northern need 121 runs of 57 deliveries. Looks like a daunting task. They're up against some quality bowling of Yasir Shah. 9 for 1 into his third over. It's amazing. So yeah, coming back to the point, talking about shuffling the batting order to accelerate, but that hasn't happened. At the end of 5 overs, both were 35, both the teams in comparison. They're 21 behind at the end of 10, which means something's not going right. Yes, they're losing wickets. Umar Amin's wicket was a big loss. And it's just the batting order. You can't say that one batsman is injured and you completely lose your way. That's not happening. We discussed earlier about Hassan Nawaz and the talent he possesses. That's the last wicket. Hassan Nawaz has got starts, but he needs to convert them to big scores. Cannot afford to score a 30, 28 and then just go back in the dugout because 5 shots of yours were loved by everyone. I'm not criticizing. I'm no one to criticize. I'm just saying that you have to graduate. As a player, you say, no, my job is to finish the game if I've got a start. Well, in my opinion, it's the lack of experience in that northern batting lineup. If you look at other teams, especially Balochistan, if you look at them, they're full of experience. And on a pitch like this, you need experience. You need to stay on the pitch. And Shan Masood and Haris Sohail showed us that if you stay on a pitch, your selection should be right, and then you can get runs. It's not that you're going to come and start hitting big on a pitch like this. Even teams like KP have struggled. They don't have luxury of much experience in that lineup. Umar Amin, he was the only one probably in my opinion. 11 gone, 63 for 5. A lot of work needs to be done for Northern. That's probably what these three are thinking. Ijaz Ahmed, the head coach, Samiul Niazi on the left, Masood Anwar on the right. He's the manager of the team. Probably they need to get a batter in somehow. They need to promote somebody from second 11 maybe, because this batting side will not work on a pitch like this and against quality bowling lineup like Balochistan is, or KP or Sindh. Yeah, the only team they've beaten is Central.
I agree with you, and which is why I'm saying Hassan Nawaz needs to bat a little longer, because he doesn't have. The team is relying on his batting. Unlike someone like Hasibullah, so rightly pointed out by our statistician, that Hasibullah has got the support of Asad Shafiq, Shan Masood, and they teach him, or even if they don't say anything to him, he's watching them. Hassan Nawaz seems to be at bay. Speaking of getting somebody to strengthen their side, I don't know what the regulation is, but there is a transfer window open, but are you calling people from second 11, and who do you send to second 11? From the existing squad, who gets demoted? I don't know if it works that way. Amir Yamin was transferred, but then that's from the national T20 one squad to another. We haven't had any player being thrown in from second 11 to the first 11 yet. We've seen it last year, yes. We've had a few, okay, I'm being told. Umair Masood. Umair Masood is one, yes. Yeah, I agree, but you just mentioned about the transfer of Amir Yamin from Southern to Central. Why not transfer somebody from Balochistan? They're full of superstars. I mean, somebody like Haris Sohail would be very effective here in Northern. Excuse me. You have to let go a player. You can't just pick somebody. You can't just say tomorrow morning Shan Masood has to come and be giving it to someone else. Southern did that. You have to relieve somebody, I suppose, with the permission of the current team's management. So Amir Yamin has not been picked up, I think, randomly. It has to be a consent. Top edge, go. Oh! Your end. You tell us about this drop. Just a lazy effort. That's all. Nothing else. Lack of concentration. Probably would have taken it very easily because they know that the game is in their hands. Oh, look at that. He wanted to sweep it. Top edge. Yeah, that's laziness. No concentration. That's it. Elbow cash. How about Umar Akmal? He's in second 11. You need a better. Central Punjab needs him more than Northern. Yeah. Because Central is struggling themselves too. Okay. Would you have him in one of these, like a Northern or somebody, strengthen the middle order? I don't know. I'm not sure if he'll be able to gel in with them. Oh, that's a big one. But there is a fielder. Oh, he clears him. Sohail Tanveer now showing that why he's playing at number 6. He has the potential to hit big sixes. He's showing it here. The 12 gone, 75 for 5. Well, I still believe that Balochistan is over star-studded. To be very honest, if you look at Balochistan's squad last year, Ahmad Butt was already there, Yasir Shah was already there, Haris Sohail was already there, Bangalzai was already there. So they've not been given something extraordinary apart from Shan Masood. Hussain Talat also. And Hussain Talat has come in, who's not performing with the bat. He's not even getting an opportunity there. That's my question. But if he's not getting opportunity for Balochistan, why not to send him to a team which needs a player like him? That's the only question I have. I hope the people in the seats are listening to you. Make one side weaker and make the other stronger. We'll get the balance. It will make things interesting. This National T20 Cup will be interesting. It's very balanced. I personally believe, I'm not trying to go against your word, I feel it's balanced. It's just the application is not there. If you talk about star-studded teams, KP has nobody. But they are 4 out of 4. Forget about them. They're all superstars. All 11 of them. Because they're such a huge side. They win everything. Still, I think because Sohail Tanveer is playing at number 6,
they're definitely a better shot. Good, Shaji, good, अच्छा है, शाबाश. बहुत आला, Shaji. Results definitely not going their way. They've lost 3 games. They won against Central. They're almost going to lose this one until something heroic happen. Sohail Tanveer plays a cameo from here with Amir Jamal. 104 of 45. Looks a daunting task. Good wrong one, good But I think they're against somebody like Balochistan side. This young side on new bouncy pitches. Difficult. Come on, Shah. Badhiya, badhiya. Catch it, catch it. Big shot, catch it is the call, and it's gone over. You can, in T20, 2 batsmen can take the game away from you. 2 big overs can level it out for you. That's a good shot. In his zone, in his arc. With the angle. Beautiful. Played it all the way. Sohail Tanveer trying his best, using all his experience. Can he do it for remaining 7 overs? That's the question. Can we do it for a longer period of time? He's on 32, which is good. Can he get to that 70 already from here for Northern? Make things interesting. He'll keep strike. 85 for 5. Come on, quick change. Sohail Tanveer has a couple of 50s at this level. But what can he alone do it? He needs a partner who equally has to play well, play fast, at a good rate, because they need 97 of 42 deliveries. That's 7 overs. That's the man on your left. I'm very surprised that he is not included. Zaman Khan. And they need to get him in somehow, because he's such a huge talent. He's got that X factor about him. So yes, if going further, Northern will have to do a bit of work in their selection process, in their planning, as you said, in their execution. Umar Amin has to step up, needs to play the sort of inning that Shan Masood is playing for Balochistan, or Sarfaraz is playing for Sindh. Kamran Ghulam for KP. They're having a nice lunch. They're not worried about the game, I guess. The required run rate is 13.86. That's a good opportunity, on the other hand, for somebody like Amir Jamal. He's known to be an all-round cricketer. He's got a platform here, show what he's made of. His batting talent, we've seen he bowled well today until his last over. Here is an opportunity to him to show his talent as a batter. Into his 3rd over. He's going to have 13 runs for 1 wicket. Khurram Shahzad bowled really quick with some venom. So all those short deliveries, sharp bounces. Got a lovely action, lovely run up. And he's put that short ball away into his own stand. That Sohail Tanveer stand there. How many times you can do that in life? Probably the only time, because if you look around, he's the only current player who's got the stand on his name.
And he's played it exactly right there. Good shot. Never gives me free tickets for a stand. Eight of the over, so need one more in the over. Take them to 100. Good ball. He's getting that extra nip today. We haven't seen that. He was fuller earlier on in previous games. A touch expensive as well. Look at the ball go, angle. It's like a tennis ball bounce. After pitching, zipping through. An extra bound. The pitches have been excellent. We've really been impressed by the pitches made here at Rawalpindi Cricket Stadium. Experiments been done. Some extra bounce, pace, and batters have struggled. Only batters with good technique have scored runs. Doesn't have hold of it, and it also lands in the vacant zone. 9 of the over, 1 ball to go. Getting close to halfway stage of the tournament, the Kingdom Valley National T20. Let's have a look at the points. AP is leading 4 games out of 4, and then there's a bit of a gap. So they're the only ones who's separating themselves from the others. Then you got 4-4-4 for 80 of Southern Punjab and then Balochistan. It'll be a close call in the end if they keep playing like this. Central Punjab needs to take off now, like now. They cannot afford to fall back any further. Northern, after this loss, will also have 4 games to their name. They would have lost 3 out of 1, but that's if they lose this one. Balochistan right in the center of the table. After this win, they will promote themselves for sure. $95 for 5. Northern camp. They'll be very disappointed by this performance. They've been just outplayed in both departments. In fact, 3 departments, in fielding also. The discipline they showed. This Balochistan bowling side, they've been just brilliant. Well led by Yasir Shah. And you just could tell by the end of first inning the way Northern were bowling. They were all over the place, bowling no balls, misfields, being hit all over the place. I agree, Shan Masood was brilliant, but he was helped by some poor bowling. Well, Shan Masood, the way he played, I was talking to Shah Faisal that his strike rate has been 143. And he's only played 8 balls in the power play. So his strike rate is outside the power play, and the way he's improvised, the way he's actually formed his innings, he wasn't going great guns straight away. But he was rotating strike, and then he started hitting everything. So it was a plan. 81 in 10 overs, and to get 100 in the next 10. Extra bounce for Kashipatti. 2 is the call. Sohail Tanveer is just jogging for 1. Yeah, that's what I say. You're giving the example of Shan Masood. You need to be technically very correct to be scoring on these pitches. They won't allow you to come and hit here or there. You need to spend time on the pitch, keep scoring runs. You need to be good at square of the wicket. That's where you get runs. That's where Shan Masood scored most of the runs today. Catch it, Ali bhai, catch it. Oh, he's dropped it. Just about when I was saying it's gone, he's dropped it. Getting alive, Sohail Tanveer. That's Ali Waqas. He's the substitute, the left-hand batter. Shan Masood is not in. He could have taken shades from any of his partners. He's looking into the sun. Now, there's no point doing that.
Good fielding, Asad bhai. Very well. 85 of 33. Wide, wide. Come on, Cash. Yeah, look at that. Yeah, you've been sitting out, you get an opportunity to field and you drop the catch. How sad is that? Someone give him shades. Oi. Ball goes to him again. Get him a sponsor, please. Why he's playing his game, his cricket. Why should I get a sponsor for him? He's just asking for help. I'm sorry. Sorry. Get your own pair of glasses. Oi, well done. Shades. That single will take Northern to 100. 100 for 5 after 15. They need 82 more in 5 overs. पांच ओवर्स में 82 रन की जरूरत है नॉर्दर्न को। ये रन चेज कुछ अपनी सिमत खो सी गई, बल्कि कहना चाहिए कि आगाज से ही कोई सिमत मुतय्यन हो नहीं सकी। 43 रन पर सोहेल तनवीर नॉट आउट हैं। इसकी बड़ी वजह अली इमरान की अदम मौजूदगी है, जो आज जख्मी हो गए और वो मैदान से बाहर चले गए और अब बैटिंग भी नहीं कर सकेंगे अपनी उस चोट के सबब। तो ये एक नॉर्दर्न की टीम को भी बहुत बड़ी चोट लगी है, क्योंकि वो इनकी बैटिंग में रीढ़ की हड्डी की हैसियत थी। अली इमरान की पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे, तो जहनी तौर पर भी वो एक ऐसा धचका था जिससे ये सह नहीं सकें। और ये जोरदार शॉट खेला, सनसनीखेज छक्का लगाया आमिर जमाल ने। चंद रोज पहले आमिर और सोहेल तनवीर ने अच्छी पार्टनरशिप की थी, अपनी टीम को जीत के करीब लाए थे, और आज हो के गेंदों और दरकार रन्स में बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन आमिर के पास मौका है कि वो अपनी हिटिंग सलाहियतों का इजहार करें। अच्छी ऑलराउंड सलाहियतों के मालिक खिलाड़ी हैं, काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं इनसे, और ये स्टेज सेट है। टारगेट मुश्किल जरूर है, लेकिन आज की मॉडर्न डे क्रिकेट में 5 ओवर में 80 रन जो है कभी कभार देखने को जरूर मिल जाते हैं। लेकिन आमिर जमाल की थोड़ी सी इशू है मेरे ख्याल, उनकी जो बाएं हाथ की कलाई है, वहां पे स्प्रे किया उन्होंने और इस तरह का छक्का लगाया। इस तरह के काफी बड़े छक्के लगाने की जरूरत है। किंगडम वैली रॉयल लाइफस्टाइल, इनके आप ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाएं और आपके पास एक्साइटिंग इनामात जीतने का मौका है, और आप भी अगले विनर हो सकते हैं किंगडम वैली के। क्या ये भी किंगडम वैली में प्लॉट लेने के बारे में सोच रही हैं? .7 रन के औसत दरकार है। पानी सर से खासी हद तक ऊंचा हो चुका है। तो फुल टॉस पर 4 रन, खराब गेंद थी और बिल्कुल सजावार थी कि इससे बाउंड्री तक पहुंचाते आमिर यामीन। वो कुछ हैरान से रह गए, अंपायर की तरफ देखा, लेकिन जाहिर है कि ये वेस्ट हाइट की नो बॉल नहीं थी। 2 गेंदों पर 10, अच्छा आगाज किया है ओवर का।
16 रन की औसत दरकार थी इस ओवर से पहले। आमिर जमाल को मुसलसल कुछ ना कुछ मसले दरपेश हैं हेलमेट के साथ। अब मुझे लगता है इनके सर के साइज का ही ये भी हेलमेट नहीं है। लेकिन अच्छा खेल रहे हैं। 14 गेंदों में 20 रन बना चुके हैं और मुझे स्ट्राइक करने की सलाहितें हैं उनका इजहार कर रहे हैं। फास्ट बॉलर को अच्छी हिट लगाते हैं आमिर जमाल। नो बॉल ये इन्होंने मांग की थी लेकिन नहीं थी ये नो बॉल। सारे कुछ तो हम परस क्रिकेटर्स की काफी मिसालें मशहूर हैं और जिस तरह 2 गेंदों पर 10 रन बनाए, ये वो हेलमेट है जो चेंज किया। और अगर कोई ये तो हम परस क्रिकेटर होते तो ये हेलमेट बिल्कुल भी तब्दील ना करते, लेकिन आमिर ने जरूरत महसूस की इस हेलमेट को तब्दील करने की और अब लगता है कंफर्टेबल हैं। ओवर की पहली 3 गेंदों पर 11 रन आए हैं। अभी भी डगआउट में इशारा किया उन्होंने, मुतमईन नहीं है अभी तक। और एक और शानदार छक्का इस बार सुहेल तनवीर और ये पार्टनरशिप अब बढ़कर 56 की होगी। शॉर्ट गेंद थी, मुंह की खाना पड़ी अम्माद भट्ट को। ये खराब गेंद थी, ये सुहेल तनवीर का एरिया है। आप यहां बॉल करें और सुहेल तनवीर आपको मिड विकेट पर छक्का ना लगाएं, ये हो नहीं सकता क्योंकि यही उनका फेवरेट शॉट है। मुद्दतों गुजरने के बाद उनकी ये स्ट्रॉन्ग शॉट जो है अभी भी बरकरार है और अम्माद भट्ट को उन्होंने बिल्कुल दर्शाया कि यहां पर आप मुझे बॉल कर नहीं सकते। 49 पर जा पहुंचे सुहेल तनवीर। इस ओवर की रिक्वायर्ड रन रेट तो हासिल कर ली है नॉर्दर्न ने। ये इनकी तीसरी निस सेंचुरी हो सकती है करियर की। 2014 के बाद से कोई निस सेंचुरी स्कोर की नहीं सुहेल तनवीर ने T20s में और ये रही तीसरी निस सेंचुरी सुहेल तनवीर। आज अच्छा खेलते रहे। उनका हारिस सुहेल ने एक बड़ा आसान सा कैच शुरू में छोड़ दिया था लेकिन उसके बाद से ये पीछे मुड़कर देखा नहीं। सुहेल ने 172 के स्ट्राइक रेट पर खेले, 2 चौके और 4 छक्के लगाए और तमाशाइयों को लुत्फ लेने का इन्हें कुछ मौका फराहम किया। ऐसी इनिंग्स नॉर्दर्न के टॉप ऑर्डर बैटर से दरकार थी। अगर वो खेलते तो उनकी टीम की सूरत हाल बेहतर होती, लेकिन ये अच्छा ओवर है। 18 रन आ चुके हैं अभी तक, एक बॉल बाकी बची है। अच्छा यॉर्कर रन आउट कर सकेंगे? जी नहीं, निशाना खता गया। सुहेल तनवीर जो है तकरीबन इनके बराबर में ही दौड़ते हुए पहुंचे। 16 ओवर्स के बाद 119 पर 5। अच्छा दिन रहा आज हसीबुल्लाह खान के लिए। विकेटों के पीछे उन्होंने कैच लिया और निस सेंचुरी बनाई। 2 कैचेस ये सुहेल तनवीर। यहाँ पर एक तमाशाइयों का इंक्लोजर भी इनके नाम से मंसूब किया गया है। हालांकि मैंने कभी सुहेल तनवीर को यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए देखा नहीं है। पिंडी स्टेडियम में इनने पाकिस्तान में भी बहुत कम इंटरनेशनल क्रिकेट खेली और फिर से कदमों का इस्तेमाल किया। यहाँ 4 रन हो जाएंगे। लॉन्ग ऑफ से अम्माद भट्ट भागते चले गए लेकिन गेंद की रफ्तार उनसे कहीं तेज थी।
अच्छी बैटिंग कर रहे हैं आमिर। इस वक्त फैसला कौन फुटवर्क था, इनसाइड आउट गए विद द स्पिन। बहुत ही आला क्रिकेटिंग स्ट्रोक था ये। ओवर का आगाज एक मरतबा फिर बाउंड्री के साथ बॉलर को प्रेशर में डाल दिया है। प्रेशर के नतीजे में काशिफ भट्टी ने वाइड बॉल कर दी। पंच ओवर में 64 तकरीबन 16 का ही रन रेट दरकार था इस ओवर के आगाज से भी पहले नॉर्दर्न को। एक और अच्छा शॉट, एक और चौका। पिछले ओवर में 19 रन बनाए थे आमिर और सुहेल ने, और इस ओवर में भी पहली 2 गेंदों में उन्होंने 9 रन बटोर लिए हैं। और इंडिया बैटर्स के लिए बॉल का बुरा होना जरूरी नहीं है, और अनयूजुअल एरियाज में शॉट्स खेलते हैं। आगे गिरा हुआ बॉल था, ज्यादा पीछे नहीं था, लेकिन बाउंस पे ट्रस्ट किया उन्होंने और मिड ऑन और मिड विकेट के फील्डर के दरमियान से 4 रन हासिल किए। काफी गैर मामूली शॉट था ये। आमिर जमाल प्रेशर बिल्कुल वापस डालते हुए, और बिल्कुल जो बलोचिस्तान की टीम फील्ड में कंफर्टेबल लग रही थी एक मौके पर। गुज़िश्ता 8 गेंदों में 25 रन आ चुके हैं। यहाँ 22 गेंदों में 54 रन चाहिए, और इस बार फिर बाउंड्री मिल जाएगी। डाइव की लेकिन गेंद निकल चुकी थी। फुटवर्क कमाल का, आड़े हाथों ले रहे हैं इस वक्त लेफ्ट आर्म स्पिनर भट्टी को, जो कि बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं आमिर यामीन के सामने। बहुत ही गैर मामूली स्ट्रोक था। ऑफ स्टंप के काफी बाहर से बॉल को लपेटा उन्होंने। एक मौके पे ऐसे लगा कि काशिफ भट्टी उनको बीट करने में कामयाब हो गए, लेकिन अच्छी रीच और फिर कनेक्शन उससे भी आला। 13 रन आ चुके हैं 3 गेंदों पर। एक मरतबा फिर आमिर जमाल, ये काशिफ भट्टी प्रेशर महसूस कर रहे हैं बिल्कुल। फिर उठाकर खेला, लेकिन इस बार गेंद का रास्ता रोका जुनेद अली, फील्डर जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है, मुतबादिल फील्डर हैं। यासिर शाह अब उनका इत्मीनान चुरा लिया है इस पार्टनरशिप ने। 20 गेंदों में 49 रन। ये जिस तरह आजकल क्रिकेट खेली जाती है, ये बन जाते हैं इतने रन, खासतौर पर जब 2 सेट बैट्समैन हमला बोल रहे हों दोनों एंड्स पर। तो सुहेल तनवीर आ गए हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर के आगे। ज्यादा अच्छी रेंज है उनकी इस एंगल के खिलाफ। यहाँ नॉर्दर्न के सपोर्टर्स जो हैं, उनकी ये सोच होगी कि सुहेल तनवीर जो हैं ये थकेंगे नहीं, क्योंकि ऐसे मौके पर आपको तेज दौड़ना भी पड़ेगा। ज्यादा इन्हिसार जो है वो आमिर जमाल की हिटिंग पर है। बहुत ही क्लीन स्ट्राइकर लगे, और खेल दिया इस बार हवा में। स्टंप्स में गिरी हुई गेंद जिसे रिवर्स स्वीप करने के लिए गए, और विकेट के साथ साथ खुद भी गिर गए आमिर, और इस तरह बिल आकर ये विकेट हाथ लग गई काशिफ भट्टी के। रिएक्शन से लगा जैसे उन्हें लगा कि बॉल उनके जोन में मिल गई थी, एलिवेशन हासिल नहीं कर सके। गेंद काफी जोरदार शॉट था ये, लेकिन कैचेबल हाइट, और शान मसूद एक बहुत ही सेफ फील्डर हैं। आमिर जमाल की एक बहुत ही शानदार और सनसनीखेज इनिंग्स का खात्मा हुआ। नॉर्दर्न को थोड़ी सी उम्मीद जरूर उन्होंने दिलाई। 35 रन बनाकर आउट हुए 134 पर 6। तिहत्तर रन की पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है। महरान मुमताज सुहेल तनवीर का साथ देने के लिए आए हैं। तो अगर नॉर्दर्न टीम आज नहीं भी जीत सकी, तो इस पार्टनरशिप ने एक उम्मीद दिला दी है
कि इनका जो नेट रन रेट है वो ज़्यादा नहीं बिगड़ेगा। अगर आगे चलकर ये मैचेस जीत पाए तो ये फिर रहेंगे उस सेमीफाइनल की दौड़ में, जो कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में होना है। जुनेद खान यॉर्कर करना चाहते थे, उल्टा पर बात खत्म हुई। एक रन देने पर यासिर इस वक्त आमादा हैं, खुद भी वो बाउंड्री लाइन पर हैं। यॉर्कर लेंथ की गेंद थी और इसको सही तरह उठा नहीं सके क्योंकि लेंथ ऐसी थी, मुश्किल हो गया था ज्यादा एलिवेशन पाना। और आजकल लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि अच्छा यॉर्कर आपको करना आता हो, वरना T20 क्रिकेट में आपकी फिर जिंदगी मुहाल ही रहेगी। जी बिल्कुल, तमाम ही शोबों के खिलाड़ियों को एक्स्ट्रा स्किल्स चाहिए होती हैं इस मुख्तसर फॉर्मेट में। हवा में थी लेकिन एक ही रन बना। मेहरान ने सही काम किया, सुहेल तनवीर को स्ट्राइक वापस दी। पिछले 2 ओवर्स में 34 रन आए जो कि रिक्वायर्ड रन रेट से ज्यादा थे, लेकिन क्योंकि उससे पहले इनिंग्स इतनी डगमगाई हुई थी कि रन रेट मेंटेन करना 5 ओवर्स के लिए 16-17 का इतना आसान काम नहीं है। यहाँ पे चंद अच्छी बॉलें हुई, वहां बलोचिस्तान वापस गेम में आ जाएगी। नो बॉल, फुल टॉस, बाउंड्री बचाने में कामयाब हुए बंगल जईल। लाजवाब कोशिश, तकरीबन रन आउट कर चले थे अरसान मुमताज को। अरसान मुमताज ने पूरी कोशिश की कि सुहेल तनवीर प्री हिट खेल सकें, लेकिन अब खुद उनको सामना करना होगा। नौजवान क्रिकेटर हैं। इसी रनिंग में कंफ्यूजन हुई जिसकी वजह से दूसरा रन नहीं मिल सका। ये तो 19-20 से भी ज्यादा क्लोज मामला था। पैर स्लाइड जरूर हुआ, लेकिन जब पहली जो लैंडिंग थी उसका वो अंपायर ने देखना होता है, और चाहे उसके बाद उसका पैर का या हील का साया भी क्रीज के अंदर हो तो वो जायज मानी जाती है वो डिलीवरी। अच्छे यॉर्कर्स आज के दिन देखने को मिले हैं। पहले हाफ में कुछ नॉर्दर्न के जिस तरह सलमान यॉर्कर कर रहे थे, बलूचिस्तान की टीम ने एक बार फिर यकजा होकर अपना खेल पेश किया। बैटिंग में इनके जो नौजवान और तजुर्बेकार खिलाड़ी थे उन्होंने अपना हुनर दिखाया। शान मसूद ने, हारिस सुहेल ने और यासिर शाह ने उसके बाद बड़ा उम्दा स्पेल किया, अपनी टीम को अच्छा लीड कर रहे हैं। हुसैन तलत ने 3 विकेटें ली। तो ये आपको टीम की ही क्वेश्चन लगती है। सब ने मिलजुल कर ये काम किया है कि वो जीत की दहलीज पर लाए। लेकिन सुहेल तनवीर ये अभी भी हिम्मत हारने को तैयार नहीं। एक और छक्का, एक और उम्दा पुल शॉट और राउंडर का। सुहेल तनवीर काफी तवील कामत हैं, बहुत अच्छी रीच है उनकी। दूर बॉल करने की कोशिश की जुनेद ने, लेकिन सुहेल तनवीर ने हक्का और अपनी रीच का भरपूर इस्तेमाल किया। लगता है बहुत ही अच्छा बल्ला भी है उनके पास। बीचों बीच बॉल अगर ना भी आए तो बाउंड्री लाइन के बाहर जा गिरती है। इस ओवर में ये बड़ी हिट की जरूरत थी। आकिफ जावेद टीम में जगह इसलिए नहीं बरकरार रख सके थे बलूचिस्तान की कि वो डेथ ओवर्स में बहुत रन दे रहे थे। जुनेद खान को उनकी जगह पर लाया गया था, लेकिन उनकी गेंदों पर भी आज रन्स बन रहे हैं। इस ओवर में वो 12 रन दे चुके हैं। सुहेल तनवीर जो शॉट खेलना चाह रहे थे, बॉल उन्हें उस एरिया में मिल गई थी। थोड़ा सा एक्सिक्यूशन में चूक गए, बल्ले के बॉटम पे बॉल लगा। एक बाउंड्री अगर इस ओवर में आ जाती तो एवरेज बराबर हो जाती। अब ये जिम्मेदारी मेहरान मुमताज के पास आई है। अगर बाउंड्री लग जाती है तो नॉर्दर्न बिल्कुल हम पल्ला हो जाएंगे जो रन औसत दरकार थी उन्हें। या फिर से यॉर्कर करने के लिए जाएंगे जुनेद। जी हाँ, कनेक्ट नहीं कर सके। 18
ओवर्स जाते रहे 146 पर 6। मेहरान ने भी रैंप खेलने की कोशिश की। यॉर्कर जुनैद का बिल्कुल ऑन द स्पॉट और हल्की सी मूवमेंट भी देखने को मिली। फिर तनवीर का ये सबसे ज्यादा स्कोर है T20 क्रिकेट में। आखिरी गेंद पे सिंगल रिफ्यूज किया, इसका मतलब है कि अगले ओवर का आगाज वो खुद करना चाहते हैं। एक वक्त पे ये जो टारगेट बहुत ज्यादा दूर लग रहा था, सुहेल तनवीर की कोशिशों की वजह से मैच में अभी तक जान बाकी है। खुरम शहजाद को अब लाया गया है। काशिफ भट्टी ने पिछला ओवर किया था इस एंड से। फुल टॉस बनाकर खेल दिया, एक और चौका। सुहेल तनवीर ने बिल्कुल भी दिक्कत महसूस नहीं की और ये गेंद सजावार थी। हिकमत अमली यही थी खुरम शहजाद की, तो वाइड यॉर्कर कराया जाए, सुहेल तनवीर का जो मिड विकेट का एरिया है वहां पर हिट ना खाई जाए, लेकिन लेंथ और विड्थ जो है वो सुहेल तनवीर के मतलब की निकली। इस मरतबा भी ज्यादा कोशिश करनी नहीं पड़ी, सिर्फ कवर के फील्डर के ऊपर से खेल दिया और दोनों स्वीपर्स की पहुंच से दूर। अच्छा आगाज ओवर का, बॉलर पर बिल्कुल प्रेशर वापस डाल दिया है अब ओवर की पहली गेंद पर बाउंड्री हासिल करके। फिर विप किया, लेकिन एक से ज्यादा नहीं मिल सकेगा। ये खासा बड़ा दर्द सरी रही है जो बलूचिस्तान के कप्तान हैं कि डेथ ओवर्स में उनके बॉलर्स उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सके, वो रन्स देते हुए नजर आए हैं। आज भी सुहेल तनवीर और आमिर जमाल ने बहुत ज्यादा पिटाई कर दी। पहले टूर्नामेंट के शुरू में खुरम शहजाद आखिरी ओवर हुआ था, इरफानुल्लाह नियाजी ने एक बहुत ही मुश्किल रन चेज को बहुत करीब ला छोड़ा था। बलूचिस्तान खुशकिस्मती से वो मैच 2 रन से जीत गई थी। वो प्रेशर ज़रूर वापस आता होगा, वो यादें ज़रूर आती हैं बॉलर्स को और वो उनको मज़ीद प्रेशर में डाल देती हैं। अगली 4 गेंदों में अगर 12 से 13 रन और बन जाते हैं तो फिर मुकाबला रहेगा, लेकिन ये अच्छा यॉर्कर था, ये सीधी बॉक्स में गई, कोई जगह नहीं मिल सकी मेहरान को। आज सिर्फ 9 ही विकेटें गिरी हैं इस पूरे मैच में, बलूचिस्तान ने 3 विकेटें गंवाई। अब देखिए बिल्कुल जो पिछला शू था उसका निशाना लिया और ये वो यॉर्कर होते हैं जो बल्ला शिकन यॉर्कर कहलाते हैं, पंजा शिकन भी। एक और टो क्रशर, बिल्कुल वहीं पे बॉटम पे देख रहे हैं मेहरान। अभी तक तो उनका बल्ला महफूज है, लेकिन कल के दौर में वैसे भी बल्ले जो हैं वो जिस तरह पुराने दौर में नॉकिंग करके और ऑयलिंग करके उनको काफ़ी मजबूत बनाया जाता था, आजकल बल्ले रेडी आते हैं, लेकिन उसकी एक जो है वो शॉर्ट कमिंग होती है कि वो टूट बड़ी आसानी से जाते हैं। इस तरह की जारिंग जब हो यॉर्कर के अगेंस्ट, बल्लों की हैयत में काफ़ी तब्दीली हुई है पिछले कुछ बरस में। यहाँ वो सुहेल तनवीर के जो बल्ले का ब्लेड है आप देख सकते हैं, उससे भी अंदाज़ा आपको हो जाएगा बखूबी कि क्यों इतने ज़्यादा रन्स बनते हैं और मिस हिट्स पर भी छक्के लग जाते हैं। ब्लेड की मोटाई है वो भी पहले की बनिस्बत बहुत ज़्यादा है, लीडिंग एजेस पर भी बॉल अब काफ़ी दूर दूर तक जाती दिखाई देती है। यहाँ इससे बॉलर्स के पास बचने की छुपने की कोई जगह है नहीं, आपके पास हुनर होना चाहिए कि आप किस तरह झांसा दे सकते हैं बैट्समैन को। बोल्ड हो गए,
ये बॉलर को झांसा देना चाहते थे और रिवर्स शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन यॉर्कर पर अपनी स्टंप से हाथ हो बैठे। मेहरान आउट हुए। एक और अच्छा यॉर्कर इन पैड से भी लगी और उसके बाद ऑफ स्टंप। मेहरान मुमताज ने कोशिश जरूर की, लेकिन खुरम शहजाद उनसे एक कदम आगे रहे। इनिंग्स का खात्मा 19 के बाद 153 पर 7। खुरम शहजाद ने अच्छी बॉलिंग की, यही वजह है कि जुनैद खान को अब 29 रन्स दिफा को मिलेंगे। अब कुछ देर पहले बात कर रहे थे बलूचिस्तान की टीम स्पिरिट की, और एक ऐसा लग रहा है कि एक टीम कल्चर डेवलप होता जा रहा है। बात करेंगे इस बॉल के बाद। सोहेल तनवीर ने उठा खेला, गेंद गई ऑल द वे पवेलियन एंड पर, छक्का लगाया सोहेल तनवीर ने और एक उम्मीदों के खिलाफ एक फिर उम्मीद की झलक दिखाई उनके इस स्ट्रोक ने नॉर्दर्न के परस्तारों को। लेकिन टास्क बहुत बड़ा है। ये तो बिल्कुल इन द स्लॉट उनके जोन में बॉल थी। अच्छा सीधा ड्राइव खेला, लॉफ्टेड और 6 रन। 4 ऐसे मजीद स्ट्रोक्स की जरूरत है। सोहेल की हिम्मत की दाद देनी होगी, उन्होंने हौसला नहीं हारा। अगर रिवर्स स्विंग नहीं होती है तो जुनैद को कई बार मुश्किल हो जाती है इन ओवर्स में, लेकिन इस बार मुश्किल में उनके ऑपोजिट नंबर थे सोहेल तनवीर की बैट से लगकर गेंद तकरीबन चली थी पीछे स्टंप्स में। सोहेल तनवीर का और ये मेहरान मुमताज की मॉडर्न डे स्ट्रोक्स हैं, रैंप और रिवर्स रैंप, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा महारत की जरूरत होती है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद आप इन शॉट्स में महारत हासिल कर सकते हैं और तभी ये मैच में कामयाब होते हैं। मेहरान को मजीद मेहनत करनी होगी इन स्ट्रोक्स पर। अच्छा यॉर्कर जुनैद का, बिल्कुल बल्ले के नीचे से बॉल निकल गई। थोड़ी सी शेप उन्हें मिल रही है। ज्यादा रिवर्स स्विंग भी इस टूर्नामेंट में हमने नहीं देखी, ना ही हमने कन्वेंशनल स्विंग देखी है, लेकिन लगता है कि आखिरी बॉल जुनैद का विकेटों के करीब से किया और बिल्कुल हल्की सी शेप हुई। सोहेल तनवीर अपने स्ट्रोक को एक्सिक्यूट नहीं कर सके। जुनैद की स्किल्स का जो स्टैंडर्ड है वो भी काफी ऊंचा है और इस लेवल पर भी खेलते हैं, अपने तजर्बे के जरूर बरूकार लाते हैं। और सोहेल तनवीर ने उठा खेला, गेंद गैप में चली है। मंगल जई रास्ते में हायल हुए। असद शफीक और मंगल जई इस इलाके में आज रहे हैं स्क्वायर लेग और मिड विकेट के एरिया में, उन्होंने अच्छी फील्डिंग की है। और फिर अच्छी बॉल थी, जो कलाई का इस्तेमाल अच्छा करते हैं जुनैद। ये कॉम्बिनेशन जो आप जिक्र कर रहे थे, यंग एंड ओल्ड, प्रेशर एरिया है स्क्वायर लेग और मिड विकेट का, दोनों ने संभाल के रखा है और यही उस चीज को भी दर्शाती है जिस टीम स्पिरिट की आप बात कर रहे थे। एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो यूथ और एक्सपीरियंस का वो नजर आ रहा है इस टूर्नामेंट में बलूचिस्तान की टीम में और कामयाबियां समेट रहे हैं मुसलसल। यहाँ दूसरी जानिब इतनी ज्यादा डेप्थ है नहीं नॉर्दर्न की इस टीम में, जिसके हेड कोच एजाज अहमद हैं। टीम के बेशतर खिलाड़ी जो हैं एक दूसरे के साथ पहली बार खेल रहे हैं और नॉर्दर्न को अगला मैच जो है वो अब सदर्न पंजाब से कल शाम को खेलना है। बलूचिस्तान की टीम खैबर पख्तूनख्वा से मुकाबला करेगी। 2 दिन के बाद वो मैच खेला जाएगा बुध को। शान मसूद, मुश्ताक अहमद, इन्होंने टीम को जिस अंदाज से यकजा किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। बलूचिस्तान अब ये चैलेंजर होंगे केपी के। बलूचिस्तान और केपी ये 2
सबसे मजबूत टीमें लग रही हैं और जुनैद खान ने इस मैच को यॉर्कर पर खत्म किया। 162 रन नॉर्दर्न की टीम बना सकी 182 के ताकुब में, और सुहेल तनवीर की निस्फ सेंचुरी भी उनके करियर का जो बेहतरीन स्कोर था अपनी टीम को शिकस्त से नहीं बचा सका। और 19 रन से बलूचिस्तान की टीम फिर से सुरखरू हुई और दूसरी बार पहले बैटिंग करके कामयाबी हासिल की है बलूचिस्तान ने। बिलाशुबा वो इस जीत के हकदार हैं। सुहेल तनवीर की इनिंग्स की दाद देनी होगी, जो नेट रन रेट जो बाद में इस टूर्नामेंट में इस्तेमाल में आ सकता है, उसके लिए उन्होंने नॉर्दर्न को ज्यादा बड़ी शिकस्त से बचाया। लेकिन ये लम्हा बिल्कुल बलूचिस्तान के नाम है, जिन्होंने इस पूरे मैच को बहुत ही अच्छी प्लानिंग के साथ खेला। पहले उनकी बैटिंग इनिंग्स अगर आप देखें तो जिस तरह पावर प्ले में उन्होंने आगाज किया और उसके बाद उन्होंने इनिंग्स का मोमेंटम बिल्ड किया और जिस तरह फिनिश किया, जब वो बॉलिंग पर आए तो किसी लम्हे ऐसा लगा नहीं कि नॉर्दर्न इस स्कोर को चेस कर पाएगी। सिर्फ सुहेल तनवीर और आमिर जमाल की जब पार्टनरशिप थी, कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि शायद वो कोई मौजज़ा सरंजाम दे दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हसन नवाज और जीशान मलिक ने बैटिंग शुरू की थी नॉर्दर्न की। जीशान मलिक सिर्फ 4 रन बना सके। खुरम शहजाद ने उन्हें विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराया। हसीबुल्ला ने एक और कैच लिया रोहिल नजीर का, और वो भी डबल फिगर में नहीं जा सके। उमर अमीन आए और गए हुसैन तलत के पहले ही ओवर में जब दूसरी विकेट गिरी थी। हसन नवाज से जो बड़ी इनिंग्स की उम्मीदें थी वो आज भी रंग नहीं ला सकी। सुहेल तनवीर और आमिर जमाल ने अच्छी मुजाहमत की, लेकिन वो नाकाफी साबित हुई। हुसैन तलत बॉलिंग में 4 रहे। बलूचिस्तान के लिए विकेट उन्होंने हासिल की 17 रन देकर, लेकिन ये एक अच्छी टीम एफर्ट थी थ्रू आउट द बॉलिंग यूनिट। उन्होंने एक दूसरे को अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया। खुरम शहजाद ने एक मरतबा फिर नई बॉल से काफी मुतासिर किया, अच्छी पेस जनरेट की रावलपिंडी की इस पिच पर, और यासिर शाह का स्पेल भी बहुत ही शानदार था। सिर्फ 21 रन देकर 1 विकेट हासिल की, और पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में बलूचिस्तान की नॉर्दर्न के खिलाफ ये पहली जीत थी। जुनैद खान ने बॉलिंग का आगाज किया। खुरम उनके हमरा थे और दूसरी जानिब दोनों बैट्समैन जारहाना मूड में नजर आए, लेकिन जीशान मलिक फिर कॉट बिहाइंड हो गए। एक उठती हुई गेंद पर हसन नवाज अच्छे टच में लग रहे थे जितनी देर तक विकेट पर रहे रोहिल नजीर, लेकिन उनको साथ छोड़ गए। और उमर अमीन जो हैं उनने भी अपनी टीम को मंझधार में छोड़ा। बाद में यासिर ने हसन नवाज का बहुत उम्दा कैच लेकर रही सही कसर निकाल दी। सुहेल तनवीर ने अपनी टीम को बलूचिस्तान के स्कोर के करीब लाने की अपनी कोशिशें जारी रखी। इसी असना में स्टंप हो गए मुबस्सिर। सुहेल तनवीर को एक मौका मिला था जब हारिस ने बड़ा ही आसान कैच उनका छोड़ दिया, और फिर बॉलर्स का बुरा वक्त सुहेल तनवीर के सामने शुरू हो गया। आज वो सुपर स्ट्राइकर बने रहे काफी देर तक। स्पिनर और फास्ट बॉलर्स दोनों की उन्होंने पिटाई की। एक और कैच गिरा सुहेल तनवीर का। आमिर जमाल ने जब उन्हें ज्वाइन किया तो बॉलर्स ऑफलाइन नजर आए। अम्माद भट्ट के इस ओवर में 19 रन बनाए थे सुहेल और आमिर ने। अच्छा इनसाइड आउट शॉट था, और आज जो स्पेल किया हुसैन तलत ने, उसने किसी हद तक काशी भट्टी पर अम्माद भट्ट पर दबाव कम कर लिया था। इसी वजह से काशी भट्टी विकेट लेने में भी कामयाब हुए, और बाद में सुहेल तनवीर ने अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। बाउंड्रीज का सिलसिला भी चला और मेहरान उनका आखिर में साथ छोड़ गए। सुहेल तनवीर बार बार बाउंड्रीज को क्लियर करते रहे, लेकिन अपनी टीम के लिए वो चोटी सर नहीं कर सके 182 की। बहुत बहुत मुबारक हो बलूचिस्तान को, उनने तीसरी कामयाबी हासिल की है और उनके पॉइंट्स अब 6 हो गए हैं। 181 रन स्कोर किए बलूचिस्तान ने। हसीबुल्ला ने बड़ी उम्दा निस्फ सेंचुरी बनाई। शान और हारिस ने भी आला बैटिंग की। सुहेल, आमिर, मुबस्सिर
जो हैं कामयाब बॉलर्स में से थे और जवाब में 162 से आगे नहीं बढ़ सकी नॉर्दर्न। सोहेल तनवीर के 74 रन भी टीम को शिकस्त से ना बचा सके और 19 रन से बलोचिस्तान ने मैदान मारा। पॉइंट्स टेबल पे टीमों के दरमियान अब वाज़े फर्क आना शुरू हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा की टीम नाकाबिले शिकस्त है। बलोचिस्तान की टीम भी 6 पॉइंट्स के साथ टेबल पे दूसरी पोजीशन पर विराजमान है। एटीएफ सदर्न पंजाब की 2 विक्ट्रीज हैं। सिंध की टीम 2 विक्ट्रीज के साथ अभी तक जो सेमीफाइनल की मुमकिन लाइनअप है उन 4 पोजीशंस को हासिल किए हुए है। नॉर्दर्न और सेंट्रल पंजाब को बहुत कुछ करना होगा अभी इस टूर्नामेंट में। यहाँ एक वक्फा आने को है जिसके बाद देखिएगा इनामी तकरीब। Hello and welcome to the post-match presentation of match 12. This was between Balochistan and Northern, and a great fight put up by Northern in the end, but eventually Balochistan stole the 2 points away.
I'm going to welcome our guest today, Mr. Mohammad Ramzan. He's manager Kingdom Valley. Welcome and joining us today. We have the Kingdom Valley player of the match, and the adjudicators have decided it's going to be a joint player of the match. And it goes to two players, one from Northern, one from Balochistan. From Balochistan is Hasibullah. He's got 2 catches and a stump, 52 of 44, 4 boundaries, 2 sixes. And along with him is Suhail Tanveer, 1 wicket and 74 of 42 with 3 boundaries and 6 sixes. Please come forward, both of you. He'll receive the 25,000 rupees cash award and, of course, the trophies, both for Hasibullah and Suhail Tanveer. Hasib, saath ek tasveer le lein. We'll straighten that up. Yeah, that's better. Okay. Brilliant effort from both the players. Eventually, one team wins, but full marks for the effort. We'll have a word with both of you. हसीब आपसे स्टार्ट कर लेते हैं. हसीब ओपन करने के लिए गए थे, एक प्लान अच्छा था आपके पास. शायद एक एडवांटेज ऐसा है कि आपके साथ असद शफीक हैं और शान मसूद हैं, तो अच्छा आपको फीडबैक मिलता रहता होगा नॉन स्ट्राइकिंग एंड से. जी बिल्कुल, पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ. उसके बाद मैं ख़ास तौर पे मुशी भाई और यासिर शाह का, जो जिस तरह मेरे पहले 3 इनिंग्स इतने अच्छे नहीं किए थे, उसके बाद यासिर शाह और मुशी भाई समझाते रहे और शाह जी ने यही कहा मुझसे कि आपने टाइम लेना है, और जाके मैंने टाइम लिया तो वही हुआ, रन्स भी हो गए. और असद भाई भी साथ होता है तो बहुत मोटिवेट करता है, और शान भाई भी समझाते हैं, तो उनसे सीखने का बहुत मिलता है. आपकी इनिंग्स देखते हैं तो टेक्निकली काफ़ी साउंड है. आप 50 आपने मुकम्मल किए, ऐसा लग रहा था कि आप बड़े शॉट्स लगाना चाह रहे हैं हर बॉल पर, लंबा लेके जाना चाहेंगे आगे इनिंग्स को. जी बिल्कुल, उस टाइम पे टीम को ये रिक्वायर्ड था कि ओवर में 10 से 9 लाजमी थे, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि हर ओवर में एक बाउंड्री लग जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लगा नहीं. इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचेस में कोशिश करूँगा. चलिए, वेल प्लेड. थैंक यू. सुहेल से बात करते हैं. सुहेल, एक्सपीरियंस सारा आपके पास है, क्या देखते हैं कहाँ पे लैग कर गए इस गेम में एज अ टीम? आई गेस अर्ली विकेट्स चेज़ में आपको, स्पेशली व्हेन यू चेजिंग 180, यू नीड अ गुड पावर प्ले. हमने विकेट्स भी लॉस किए और हमने रन्स भी नहीं किए, एंड दैट put us in a position where we never came back. I tried my best, but the idea when I went in, we were 4 down for nothing. So पहले मैंने कोशिश की कि इसको थोड़ा सा एक decent total पे लेके जाएं, क्योंकि still tournament is very open. So I didn't want to lose by 100 run margin. So जब मेरे साथ बाकी भी खेल रहे थे तो idea यही था कि थोड़ा deep लेके जाते हैं, and then we'll give ourselves a chance, क्योंकि I knew कि I can hit and Amir as well. So थोड़ा सा अगर आमिर मेरे साथ और थोड़ा खेल जाता तो वी माइट फिनिश बिट मोर क्लोजर. हाउ डिड यू सी द विकेट जब आप कर खेल रहे थे वहाँ पे, क्योंकि थोड़ा हमने स्ट्रगल देखा, इनिशियली रन्स नहीं बन रहे थे, पावर प्ले भी, इनफैक्ट 10 ओवर तक भी. बाद में आपको इजी हो गया था या कोई एक्स्ट्रा एफर्ट था, कोई ऐसे ट्रिक थी जो आपने अप्लाई की है? नहीं, आई गेस देयर वाज नथिंग इन द पिच. आई मीन इट वाज अ बैटिंग पैराडाइज. मैंने बॉलिंग भी की और पिछले 3-4 मैचेस से कर रहा हूँ. आपको थोड़ा अपने आप को यहाँ पे टाइम देना होता है. ऐसा नहीं है कि आप जाते ही छक्के मारना शुरू कर देंगे. सो वो जैसे मैंने कहा कि हमने विकेट लूज़ कर दी अर्ली ऑन. हम थोड़ा सा पावर प्ले में एज ए टीम शायद थोड़ी जल्दी कर रहे हैं. बैट्समैन जो हैं वो अपने आप को टाइम नहीं दे रहे. वी डोंट अंडरस्टैंड दैट के 20 आवर्स आर गुड इनफ. अगर आप थोड़ा डीप डाउन लेके जाएं तो 20 आवर्स बहुत होते हैं. सो वही मैं अपने यंगस्टर्स के साथ बात कर रहा हूँ, करता रहता हूँ. कोशिश यही होती है कि इधर खेलने का मकसद यही है कि जो हमारे आने वाली यूथ है, जो आगे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए खेलना है, उनको अच्छा फीडबैक दे सके गेम के बारे में. चलिए, ब्रिलियंट. एंजॉय योर बैटिंग एंड गुड लक. Player of the match along with Hasibullah, Suhail Tanveer. I'll call Umar Amin now, captain of Northern. We'll have a quick word with him as well. उमर, टॉस पे आपने 150 की उम्मीद रखी थी कि उनको रोकेंगे, और इनफैक्ट काफ़ी हद तक 80 थे ये लोग 10 ओवर पे. कहाँ आपको लगता है कि आखिरी 5 ओवर बहुत लूज़ हो गए? जी बिल्कुल, लास्ट 4 ओवर्स में हमने 60 रन्स दिए हैं, कंसीड किए हैं, तो आई थिंक वो थोड़ा सा एक टर्निंग पॉइंट था गेम का. वहाँ पे हमने वी लीक्ड वे टू मैनी रन्स. उसके बाद फिर स्टार्ट हमारा पावर प्ले में इतना अच्छा नहीं था. हमने पावर प्ले में अपने 3 विकेट्स लूज़ कर दिए थे, जिसकी वजह से वी वर नेवर इन द गेम. पावर प्ले में भी आपने अच्छा मेंशन किया, 5 ओवर्स तक आप लोग साथ साथ ही थे दोनों टीमें कंपैरिजन में. इनफैक्ट 1 विकेट आपकी एक्स्ट्रा थी. अगर मैं अली इमरान को इंक्लूड कर दूं तो शायद 3 कह सकते हैं आप. बट एक्सेलरेशन पॉसिबल थी, थोड़ा लेट एक्सेलरेट किया. बिल्कुल, अच्छा पॉइंट आपने रेस किया. आई थिंक हम लोगों ने थोड़ा सा उसको बहुत डीप एंड तक छोड़ दिया.
एक गुड साइन था। सोहेल भाई और आमिर जमाल की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप हुई, लेकिन अगर वही थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ा सा पहले अगर एक्सलरेट कर लेते तो थोड़ा सा बेटर चांस होता चेस करने का। अली इमरान की क्या अपडेट है, कोई है आपके पास? अली इमरान की अभी तक जो पॉसिबल मेरे पास जो लेटेस्ट अपडेट है वो उसने थोड़ा सा अपना नी ट्विस्ट कर लिया है, तो कल वो अपने स्कैन के लिए जाएंगे। आई होप कि वो ज़्यादा सीरियस ना हो। चलिए, होप ही गेट्स वेल सून एंड वेल प्लेड। थैंक यू सो मच। Umar Amin, captain of Northern. I'll call Yasir Shah, captain of Balochistan. We'll have a quick word. Hard-fought game from Yasir Shah and his men. Yasir, बड़ी ज़बरदस्त फाइट रही है और ऐसे गेम जब जीतते हैं तो और कॉन्फिडेंस लेवल टीम का बढ़ता है। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ और हाँ, कॉन्फिडेंस बहुत मिलता है जब आप ऐसे मैच जीतते हो तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। अच्छी पार्टनरशिप रही आपने इनके डिफरेंट रोल्स ऐसा लगता है दिए हुए हैं बैटिंग को भी, क्योंकि हमने देखा कि 10 ओवर तक 80 ही थे और हमने शायद सोचा नहीं था कि 100 और ऐड हो जाएंगे। क्या गेम प्लान आप लोगों ने रखा है कि पावर प्ले में विकेट्स नहीं गिराने चाहे स्लो हो? देखिए, शुरू में थोड़ा सा विकेट मुश्किल था और जो जिस तरह धूप लग रही थी विकेट पे तो विकेट ईजी होता जाता था बैटिंग के लिए। तो ये कि शुरू के ओवर में हमने ये कहता कि विकेट्स नहीं देने, तो बाद में जब हमारे पास विकेट्स होंगे तो हम इंशाल्लाह रन्स कर लेंगे। यंग बैट्समैन जो आगे प्रॉब्ली फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, उनको अच्छा टेस्ट कर रहे हैं आप अपनी बॉलिंग से। ये कि बस कोशिश कर रहे हैं और जो हमारे यंगस्टर हैं हसीबुल्ला, वो रन्स भी कर रहा है। उसने पिछले साल भी रन्स किए, वनडे में भी और अभी T20 में भी आज उसने रन्स किए। तो हर प्लेयर अगर आप देखें तो अपना रोल अदा कर रहे हैं। अगर शान है तो ये उनके भी मतलब ये तीसरा अच्छा मैच जा रहा है और उसके भी अच्छे रन्स हो रहे हैं। आज असल चीज़ ये है कि हमारे हारिस फेल जो है वो भी फॉर्म में आ गया आज, वो उसने अच्छी इनिंग्स के लिए। आखिरी सवाल ये है कि ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू चले गए हैं टूर्नामेंट में, आपको अपनी आइडियल 11 मिल गई है या अभी भी आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहें, कुछ एरियाज़ को देखना चाहेंगे? ये कि विकेट को देखते हैं। जब विकेट मतलब अगर सम टाइम विकेट स्पिनर्स की होती है, सम टाइम फास्ट बॉलर की विकेट्स होती है, तो उसमें हम चेंज करते रहते हैं। वो ना हमारे अच्छा है, बैटिंग कम्बिनेशन और बॉलिंग कम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत मुबारक हो आपको। कैप्टन ऑफ बलोचिस्तान यासिर शाह विनिंग द गेम, ग्रैबिंग द 2 points, एंड दैट एंड्स द प्रेजेंटेशन ऑफ मैच 12 here. Thank you very much, Sikandar Bakht. And matches are coming thick and fast in this Kingdom Valley National T20 Cup. Tomorrow, the first game, the morning game, is between Central Punjab and Sindh. And in the afternoon, Northern will lock horns with Southern Punjab, the ATF Southern Punjab. All the action is coming to you from Rawalpindi Cricket Stadium. And I hope you enjoyed our coverage today. We certainly did enjoy bringing it to you. And we look forward to your company tomorrow. Until then, it's good night from Rawalpindi Cricket Stadium. Yeah, play straight, play through the line. Good shot. Finding the gap, Asifullah. उमर अमीन ने बड़ी उम्दा थ्रो की। Should be a catch. Don't drop this one and take it. Nice. Well done. Saw him coming down. Given out. Hassan Nawaz in a form of his lifetime. किनारा लगा, स्क्वायर ड्राइव करने के लिए गए थे रोहेल नजीर, बोल्ड हो गए। यासिर शाह ने कमाल कैच ले लिया।